example of all, and one of the greatest jobs of marketing that the universe has ever seen is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet, when you think of Nike, you feel something different than a shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the products. They don't ever tell you about their air soles and why they're better than Reebok's air soles. What does Nike do in their advertising? They honor great athletes and they honor great athletics. That's who they are. That's what they are about. Apple spends a fortune on advertising. You'd never know it. You'd never know it. So, when I got here, Apple just fired their agency. They were doing a competition with 23 agencies that, 4 years from now would pick one. And we blew that up, and we hired Chiat/Day, the ad agency that I was fortunate enough to work with years ago. We created some award-winning work, including the commercial voted the best ad ever made in 1984 by advertising professionals. And we started working about 8 weeks ago. And the question we asked was, our customers want to know who is Apple and what is it that we stand for? Where do we fit in this world? And what we're about isn't making boxes for people to get their jobs done, although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about something more than that. Apple, at the core, its core value, is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. And we've had the opportunity to work with people like that. We've had an opportunity to work with people like you, with software developers, with customers who have done it in some big and some small ways. And we believe that in this world, people can change it for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. And so what we're going to do in our first brand marketing campaign in several years is to get back to that core value. A lot of things have changed. The market's a totally different place than it was a decade ago. And Apple's totally different, and Apple's place in it is totally different. And believe me, the products and the distribution strategies and the manufacturing are totally different, and we understand that. But values and core values, those things shouldn't change. The things that Apple believed in at its core are the same things that Apple really stands for today. And so we wanted to find a way to communicate this. And what we have is something that I'm very moved by. It honors those people who have changed the world. Some of them are living, some of them are not. But the ones that aren't, as you'll see, you know that if they'd ever used a computer, it would have been a Mac. And the theme of the campaign is Think Different. It's the people, honoring the people who think different and who move this world forward. And it is what we are about. It touches the soul of this company. So I'm going to go ahead and roll it, and I hope that you feel the same way about it I do. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones,
we see Jesus. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Okay, good morning, everyone. Hopefully, you must have seen the video. I'll share it in the group also, so you'll have an idea what they talk. Something which is English title is at the bottom, so some sound is very old video. It's around 20 years old video. But their concept and their values are still very, very relevant. So the two things which is very, very important for us, because very soon, maybe in 1 quarter, LIC IPO की तरफ जा रहा है. 1 क्वार्टर के बाद, जनवरी के बाद LIC will be also listed. तो जब LIC लिस्ट हो जाएगी बाजार में, तो आपको आपके वैल्यूज, आपके ट्रांसपेरेंसी, आपके ऊपर आईज, बहुत सारा न्यूज चैनल्स, मीडिया, ऑडिटर्स, फर्म्स, कॉम्पिटिशंस, कंपैरेटिव स्टडीज, है ना, फ्रॉम एम्प्लॉइज, कस्टमर सर्विस से लेके बिजनेस तक, सभी जगह से आपके ऊपर स्क्रूटनी शुरू हो जाएगा. सो वहां पे क्या उभर के आता है, एंड व्हाई एप्पल इज, अभी तक एप्पल टोटली डिफरेंट है बाजार में. आज भी देखिए एप्पल का कोई भी हर एक साल एक नया वर्जन लाता है, वो 12, 13, 14, अभी 13 आया है. एंड फिर भी जब वो लॉन्च होता है तो कितने, करीब 10 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, मतलब 10-15 लाख का प्री सेल ऑफर होते हैं, वो भी 1 महीने के बाद मिलता है अपने. और जबकि आप देखोगे, मैंने लास्ट ईयर मैंने iPhone 12 लिया था. कोई जरूरी नहीं है चेंज करना. एप्पल एक ऐसा फोन है जो एवरी ईयर चेंज नहीं होता है, तब भी उसका मार्केट देखिए, जो प्राइस वो सेट करता है उससे 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं देता है. ठीक है, एंड वो चीजें आपको इजिली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में होता है. बहुत कम मार्जिन भी होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना परफेक्ट हो जाता है उसका. तो ये सारी चीजें स्टीव जॉब्स की विजन जो बता रहे हैं, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बोल रहा है कि हम एड एजेंसी के थ्रू मार्केटिंग करें तो वो सस्टेनेबल नहीं होता है. आज आप LIC की ब्रांड वैल्यू को लेके बाजार में जब काम करते हो तो एक बहुत ही डिस्टिंग्विश एक्सपीरियंस आपको मिलता है. यू फील डिफरेंट इन द मार्केट. मानते हैं कि नहीं मानते? आपको यही अगर प्राइवेट कंपनी का प्रोडक्ट लेके बैठते हैं या प्राइवेट कंपनी को, तो एक थोड़ा सा एप्रीहेंशंस होता है, लेकिन फिर भी उनका टिकट साइज हमसे ज्यादा होता जा रहा है पिछले 2 साल 3 साल में. और हम इतने बड़े ब्रांड को लेके सामने बैठते हैं, बट फिर भी हम उतना जो बिजनेस एक्सपेक्ट होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं. उसका रीजन क्या है? उसके पीछे कंपनी की वैल्यूज के अलावा आपकी खुद की कोर वैल्यूज होना बहुत जरूरी है. आप अपने समय के हिसाब से आप अपने आप को कैसे अलाइन कर रहे हो, है ना. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है. क्या अभी भी आप मैनुअल माहौल में, मैनुअल काम करने के तरीके में इन्वॉल्व हो अपने आप को? तो ये एक वीडियो दिखाने का मेरा पर्पस ये था कि समय के साथ सब कुछ बदल रहा है. क्या आप बदल रहे हैं? आपने बदला है अपने आप को? आपके बोलने के तरीके, आप कस्टमर के साथ मिलने के तरीके, या आप जब भी कस्टमर के साथ कोई प्रेजेंटेशन देते हो तो उसके तरीके में कुछ बदलाव हुई है? अगर है तो आई एम श्योर यू विल हैव रिजल्ट जो है आपको आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जरूर मिलेगा. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आके रुकती नहीं है. दूसरी होती है कि आपको अलग सोचना है. आज LIC के पास बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है, बेहतरीन प्रोडक्ट है. क्या उस प्रोडक्ट की को सही ढंग से बाजार में अलाइनमेंट हो रहा है क्या? और अगर अलाइनमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो अभी डी ग्रोथ दिखता है हमारा टोटल बिजनेस का, वो नहीं होना चाहिए था अगर प्रॉपर अलाइनमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं. क्या हम वही रेस में भागे जा रहे हैं कि भैया पिछले 4 साल पहले भी उमंग और लाभ के को लेकर बाजार में निकला था, आज भी वही हमको कंफर्ट देता है, और वो हम कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो आपके अंदर वो एक डर है ना, वो फियर है जो आपको हमेशा होल्ड करके रखा हुआ है, एंड आप हमेशा उस डर से बाहर निकलना नहीं चाहते. इसके कारण आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते. आपको हर एक ट्रेनिंग में नए नए इंस्ट्रूमेंट बताता हूँ, बट फिर भी आप ट्रेनिंग में अच्छा लगता है, आप सीखते हो, 2 दिन 4 दिन सोचते भी हो,
लेकिन 5वें दिन वापस जाके वो वही पुराने पद्धति में, वही जीवन लाभ, जीवन उमंग, उसके अलावा आपको कुछ भी दुनिया में दिखता नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जीवन लाभ, जीवन उमंग खराब प्रोडक्ट है, वो एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन आपने किसी को एक बार दे दिया है तो क्या वो कस्टमर्स की दुकान आपके लिए बंद हो गई परमानेंट? क्योंकि उसमें नयापन क्या है? वाई इनोवेशंस, वाई म्यूचुअल फंड एवरी ईयर सेम तरह के सेम सेगमेंट में एवरी सेकेंड डे कोई ना कोई, आप देखोगे आपको एनएफओ लॉन्च होता है, स्कीम्स लॉन्च होती है, और जब लॉन्च, आजकल जो स्कीम लॉन्च हो रही है आप देखेंगे कि उसको पहले दिन ही ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। आप मतलब अभी एक स्कीम लॉन्च हुआ था, फर्स्ट डे 500 करोड़ का टर्नओवर, 1000 करोड़ का टर्नओवर है। एसआईपीस की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ इतना बड़ा कैंपेन आपको लगाने के बाद कल परसों शायद 700 करोड़ प्रीमियम आया है पूरे देश में, तो हम उसका वो लगा रहे हैं कि पूरे 7 दिन 8 दिन का कैंपेन को रोक के एक दिन डाल के एंड देन वी फिनिश्ड इट। बट एक म्यूचुअल फंड एक दिन लॉन्च होता है 1000 करोड़ पहुंच जाती है, उसका रीजन क्या है? आप समझिए इन चीजों को, अलाइनमेंट करने की जरूरत। इतना कंपटीशन के बाद आज आपके कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बाजार में आए हैं, वो बहुत ही उम्दा है और हर एक कस्टमर्स के लिए कहीं ना कहीं वो फिट बैठेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एक ही प्रोडक्ट से सारा सॉल्यूशन मिलता है। सो इस मिक्स को स्टडी करने के लिए हम अभी फैग एंड ऑफ द सेशन आ गए। फैग एंड ऑफ द सेशन मतलब अभी से लेके आपके पास 70 दिन है ना, वो चक दे का 70 मिनट का डायलॉग याद आता है, तो 70 डेज आपके पास है। तो 70 डेज के हिसाब से मैंने आज का प्रेजेंटेशन लिया है। सो मे नॉट बी स्पेसिफिक ऑन वन प्लान, बट मैं आपको अभी तक इस साल जितने कुछ सिखाया हूँ एक रिकैप करा देता हूँ, ताकि आपके स्ट्रेंथ को आप कितना जल्दी पुश कर पाओ। कुछ स्ट्रेटजी मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, जो स्ट्रेटजी आपके टारगेट को पहुंचाने में मदद करेगी। वो भले आज के डेट से आप शुरू करो, मान लो आप 0 से आज शुरू करते हो, एमडीआरटी का फिगर 0 है, तो भी 7-7.5 लाख कमीशन आपको लाना है, तो उसके लिए अभी से आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? अगर आप पूरा 70 दिन आपको बेस्ट अपने काम में लगाओगे, तो ऐसे नहीं कि अभी भैया अभी तो दिवाली का सीजन आने वाला है, फिर आप कुछ भी घर में काम करते नहीं हो, कोई सफाई सुथरा करने वाले नहीं हो, लेकिन फिर भी आप दिवाली के कारण मेंटली बिजी हो जाओगे। दिवाली के 4 दिन तो फेस्टिवल को खत्म होने में लगता है, तो उसमें बिजी हो जाओगे। हमारे गुजरात में तो है कि भाई 5 दिन काम नहीं करना है, लाभ पांचम आ रहा है ना, लाभ पांचम में शुरुआत करेंगे। पूरे साल काम नहीं किया है, लेकिन वो 5 दिन पक्का काम नहीं करेगा, है ना, तो आपके लिए लाभ पांचम के दिन भी क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। तो एक एक समय आपका वेस्ट होगा, और फिर 70 मिनट और 70 दिन की कहावत जो है ना, वो फीका पड़ता है। एंड देन यू फाइंड सम एक्सक्यूजेज, सर हो नहीं पाया, मैं क्या जनरल इंश्योरेंस में लग गया, मेरा क्या ना इजिली मार्केटिंग हो रहा था सर, पैसा खूब कमाया सर, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस तो बुला बुला के लोग दे रहे हैं। ये सब टेम्पररी सेटिस्फेक्शन अपने मन को दे सकते हो। एलआईसी आपके फाउंडेशन है। आप जो भी जनरल इंश्योरेंस से, म्यूचुअल फंड से पैसे कमा रहे हो ना, ये सब फाउंडेशंस नहीं बना सकता आपको। आप समझो इन चीजों को। इट विल गिव यू अ सर्टेन प्लेटफॉर्म, टेम्पररी प्लेटफॉर्म। मेरा एक एजेंट है यहाँ पे, वो लास्ट ईयर 1.5 करोड़ रुपया कमाया था, उसने 1 करोड़ रुपया मार्केट में लगा दिया। ठीक है, कल हमसे बात हो रही थी, बोला सर 2.25 करोड़ मैंने कमा लिया, इस साल तो मैं कोई कमीशन नहीं भी कमाऊंगा एलआईसी से। सर तो मार्केट नहीं मेरे को कमा के दे दिया, अब तो सर मजा आ रहा है। तो मैंने कहा कि पहली बार मार्केट में इन्वेस्ट किया था? नहीं सर, पहले भी किया था। कब किया था? 10 साल पहले। कितना किया था? 5 लाख किया था। कितना मिला? 50,000 वापस आया था सर। तो भगवान ने सर पूरा सूद समेत हमको लौटा दिया। तो मैंने कहा अगले साल भी ऐसे लौटाने वाला है? इसकी गारंटी नहीं है। आप समझो, कभी कभी है ना, मोदी वेव पहली बार आया था ना 2014 में, तो ऐसे ऐसे एमपी बन गए थे जिनको खुद को भी भरोसा नहीं था कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सेलेक्ट हो जाऊं। तो ये वेव हमेशा नहीं मिलेगा आपको। एलआईसी आपको हमेशा साथ रहने वाली है। स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं मैं इस चीज से, क्योंकि मुझे कुछ फीडबैक हैं जो मुझे देखने को मिलता है कि आप लोग कंफर्ट जोन से इजी मार्केटिंग जहां पे हो रहा है वहां पे आप आगे चले जा रहे हो। वो इजी मार्केटिंग क्या क्या होता है? क्योंकि कोविड आया तो हेल्थ इंश्योरेंस पुल मार्केट हो गया, यानी भाग भाग के लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराने लग गए, मेडिक्लेम कराने लग गए।
तो सब लोग उसके पीछे भाग गए, जनरल इंश्योरेंस की एजेंसी ले ली, घर बैठे बिजनेस हो रहा, रोज 5 पेपर आ रहा है, खाली भरना है 15% 20% कमीशन आ रहा है, वेरी इजी। बट गारंटी हो आप अगले साल वो रिन्यू होने वाला है। याद रखना इन चीजों को, मैं याद दिलाऊंगा आपको, 4 साल 3 साल के बाद आपको छोड़ के वो किसी और के पास जाएगा, क्योंकि आपकी एटीट्यूड, इथिक्स को आपने छोड़ दिया। वो इथिक्स क्या है? होल्ड बैक योर LIC। So let us share my screen first with the LIC presentation and then कोई एक आदमी मुझे कंफर्म कर देना आपको प्रेजेंटेशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है स्क्रीन फुल दिख रहा है बड़ा? हाँ सर। ओके, सो मिशन 70 डेज में आप TOT चाहो तो TOT कर सकते हो, COT चाहो तो COT कर सकते हो, MDRT चाहो तो MDRT कर सकते हो, जीरो से कर सकते हो। फॉरगेट अबाउट 10 महीने में आपने क्या किया है, मैं सिर्फ 300 दिन में क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन जीरो से मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हो ये 70 का 60 दिन भी अगर 6-7 घंटे टिका दोगे आप इस मेहनत में, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके टारगेट पहुंचने से नहीं रोक सकता है। दैट इज स्टार्ट। सो हाउ द प्रेजेंटेशन विल फ्लो। 1.5 घंटे का करीब मैं प्रेजेंटेशन बनाया हूँ, शायद 5-10 मिनट आगे भी हो सकता है, स्लाइटली वी आर लेट बाय 15-20 मिनट्स, बट कोशिश करूंगा कि लास्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आज एक्सपेक्ट करता हूं कि सम क्वेश्चंस इनसाइटफुल आपकी तरफ से आने चाहिए, ताकि मुझे लगे कि मेरी मेहनत सफल हुई है। अदरवाइज नहीं तो सुन के चले जाओ भैया कल से करना हुई है, तो फिर कोई पर्पस नहीं है इस मीटिंग को रखने का। याद रखना फ्रेंड्स, डार्केस्ट नाइट्स ऑलवेज प्रोड्यूस द ब्राइटेस्ट स्टार। रात जितनी अंधेरी होती है ना, तारे उतने ज्यादा बड़ा चमकते। तो इस अंधेरी रात में तारे चमकते तो जरूर हैं, वो होने वाला है और वो हुआ भी है, लेकिन क्या आप रात को जगते हो उस तारे को देखने के लिए? आपको जगना पड़ेगा, तभी आप मिडनाइट उस स्टार को देख पाओगे। आप सोचोगे तारे अपने आप जगे और मेरे छत के नीचे मैं सो रहा हूँ AC जला के, एंड AC है ना, छत को चीरते हुए तारे हमको दिखने लगे, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। याद रखना इन चीजों को, कभी भी नहीं होता है। आप पिछले साल COT बने हो, TOT बने हो, इस साल फिर से जीरो से ही बैटिंग शुरू होती है। तो डार्केस्ट नाइट में स्टार देखने के लिए आपको जगना पड़ेगा और वही मेहनत करनी पड़ेगी, वही सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी जो एक्सपेक्ट किया जाता है लास्ट ईयर आपने जो किया था। क्विकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया अभी कोविड से बाहर आ गए हैं, तो आप मेंटली बाहर आए हो कि नहीं आए हो मुझे नहीं पता, बट कोविड से दुनिया बाहर आ गई है, इंडिया भी बाहर आ गई है। 100 करोड़ वैक्सीन लगाने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको ये बहाना होगा कि कोविड के कारण मेरा बिजनेस रुका है। कहीं कुछ रुका नहीं है, सारे सेमिनार्स हो रहे हैं, आपके MDRT के फोटोज देख रहा हूँ, बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस, बड़े बड़े मीटिंग में वापस वैसे ही हो रहा है। कोशिश सिर्फ इतना ही है, मुंह पे एक पट्टा लगा हुआ है, वो भी दिखाने के लिए है, बाद में तो हटा के ही रखते हैं। तो कुछ भी रुका हुआ नहीं है, सारे माहौल में, बाजार में भीड़ देखिए लक्ष्मी रोड पे तो आपको पता चलेगा, JM रोड पे, कि भैया कोई कोरोना नहीं है। सो रिकवरी इज ऑल्सो इंडिकेट करता है। कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। रिसेंट फैक्ट है, 12 अक्टूबर का डेटा मैं आपके सामने रखता हूँ कि पीपल आर वेंचरिंग आउट मोर। आप देखेंगे रिटेल एंड रिक्रिएशन पे, ये फरवरी यानी कोविड से पहले का फिगर देखिए, उससे कहीं डबल यहाँ पे हम पहुंच गए। यहाँ पे थे, नाउ वी हैव रीच्ड टू दिस फिगर। तो आप समझ सकते हो कि कितना डिफरेंस हमारा लॉकडाउन के बाद एंड आज के डेट में प्री कोविड से भी ज्यादा रिक्रिएशंस में जा रहे हैं, ज्यादा ग्रोसरी फार्मेसी की शॉपिंग हो रही है। आज अमेजन का कौन सा ग्रेट इंडियन सेल एंड फेस्टिवल सेल में आप देखो कितने का कलेक्शन हो रहा है इन वन डे। So this shows that things have come out very normal in a normal way and people have started venturing out more. इसका मतलब है expenses होने लग गए। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लोएस्ट लेवल पे आ गया है। एक गुड साइन है, क्योंकि रूरल एम्प्लॉयमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट के बीच में इतनी सारी प्रोडक्शन हो रहा है। इन्फ्लेशन जरूर बढ़ रहा है, उसका रीजन है बढ़ने का, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी का जब बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है, तो इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आपको लोगों के पास इनकम जनरेशन शुरू हो गया है, एक गुड साइन है। PMI जो है एक नॉर्मल कर्व आप देखेंगे, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। आप देखिए पिछले साल लोगों ने पहला वेव के बाद ही जैसे वैक्सीन आते ही सोच लिया कि कोरोना खत्म हो गया,
लेकिन जब सेकेंड वेव आया था तो ऑलमोस्ट इट हैज स्टेन स्टीप फॉल एंड इट वाज वेरी वेरी डेंजरस। बहुत ही मुश्किल है, कितने लोगों के फैमिलीज बिछड़ गए। ये 5 इंडिकेटर्स हैं, न्यू ऑर्डर्स, सप्लाई चेन का, इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ने से, प्रोडक्शंस बढ़ने से, सप्लाई डिलीवरीज एंड एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट, ये सबको लेते हुए एक इंडिकेटर है जिसको पीएमआई बोलते हैं। वो एक नॉर्मल कर्व पे अब आ गया है। 50 प्लस अगर होता है पीएमआई तो उसको एक अच्छा सा साइन बोला जाता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ये चीजें आपको मैं सरल भाषा में समझा रहा हूँ, एक माइंडसेट को अपग्रेड करने के लिए जब भी आप कस्टमर के पास बैठते हो। सर्विसेज आर ऑल्सो ऑन अ डिकेडल हाई। एक नया नॉर्मल हमें देखने को मिला है, बहुत सारा चेंज भी हुआ है आने वाले समय में। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है, एंड इंडिया सबसे आगे है उस मामले में। रीडिंग एबव 50 शोज मंथ ऑन मंथ एक्सपेंशन, यानी बिजनेस का एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, एंड बिलो 50 डिनोट्स कॉन्ट्रैक्शन। सो ये एबव 50 है, मतलब इकोनॉमी इज इन एक्सपेंशन मोड। जीएसटी कलेक्शंस ऑल टाइम हाई देखिए, 112,000 करोड़ के आसपास, यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा, 1,12 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। वो एक गुड साइन है जो बिफोर पैंडेमिक से भी ज्यादा है। ये क्या इंडिकेट करता है फ्रेंड्स, थोड़ा समझो आप इन चीजों को। पहली बात, कोविड इन्फेक्शन केसेस हैव फ्लैटेंड एंड रूल्स रिलैक्स्ड। आप देख रहे होंगे काफी जगह रूल्स रिलैक्स्ड हो गया, एंड अभी जिस तरह से थिंग्स को अंडरस्टैंड किया गया है, तीसरा वेव दिखता नहीं है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, फेस्टिवल्स में अभी लाभ पांचम में सारे लोग आप हिल स्टेशन को भर दोगे तो फिर वो तो हो ही सकता है, फिर दैट यू कांट अवॉइड दैट। दूसरा, 1 बिलियन ऑफ वैक्सीन लेड रिकवरी ऑफ पीपल सेंटिमेंट्स। आदमी का सेंटिमेंट, आज बाजार इतना बूम क्यों हो रहा है? क्योंकि सेंटिमेंट्स पे चल रहा है, ओवर प्राइस्ड हो रही है मार्केट, लेकिन फिर भी लोग उसमें पैसा डाल रहे हैं। ये एक सेंटिमेंट्स का है, और बहुत सारे नए स्टार्टअप्स जो हैं जो शुरू हुए हैं वो अभी रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। इकोनॉमी जो है, फॉर्मल सेक्टर्स हैव रिकवर्ड टू प्री कोविड लेवल, कुछ इंडस्ट्री को छोड़ के। जैसे आज भी हॉस्पिटैलिटी इज स्टिल ऑन ए स्टिक, बट हॉस्पिटैलिटी में भी बहुत सारी चीजें रिकवर हो गई है। फ्लाइट्स के टिकट देखिए इंक्रीज होने लग गए, एयर ट्रेवल कितना बढ़ गया है, होटल इंडस्ट्री भी अगेन कमिंग बैक टू द नॉर्मल पोजीशन बट इन ए डिफरेंट वे। अच्छी बड़ी बड़े होटल्स अभी भी बुक चल रहे हैं। सेंसेक्स एंड निफ्टी मार्केट तो ऑल टाइम पीक है। तो ये राइट समय नहीं है कि मार्केट में घुसने का। ओके, एसआईपी के थ्रू लोग घुस रहे हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का, बट ऑलवेज रिमेंबर ये समय नहीं है बहुत सारा पैसा इक्विटी मार्केट में डालने का। लेकिन डल रहा है, अभी भी डल रहा है, बट इट शुड बी इन अ फेज वाइज। जिसके पास सरप्लस पैसा बहुत ज्यादा है, जिसने डबल कमा लिया है, वो रिस्क ले रहे हैं। ये आज का समय ट्रेडिंग के लिए है, पोजीशन लेने के लिए नहीं है 2 साल 3 साल के लिए। बहुत ध्यान से आप समझो इन चीजों को। जब भी कस्टमर के पास बैठते हो तो आपके पास ये कन्विक्शंस होनी चाहिए बोलने के लिए, एंड बहुत ही सरल तरीके से आप बता सकते हैं कि सर ओवर प्राइस मार्केट है, जो 10 रुपये का सामान है वो आज 20 रुपये में मिल रहा है, तो अभी लोगे तो उसको 40 देने के लिए सर 25 साल लग जाएंगे। तो अभी ये ओवर प्राइस्ड है, वेट फॉर सर्टेन टाइम। ये समय लमसम डालने का नहीं है, छोटा छोटा अगर आप चाहते हो इन्वेस्ट करूं तो आप कर सकते हो। ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ रहा है, परचेजिंग पावर बैक ऑन ट्रैक है, बैंक में अभी भी इतना पैसा है, इतना बैंक में एफडीज है, एफडी का रिटर्न 5% से कम हो गया है, 4% 5%, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट लो है, एंड दिस विल कंटिन्यू टू बी लो फॉर द नेक्स्ट 2 years। रिमेंबर दिस, अगले 2 साल तक इंटरेस्ट रेट लो ही रहेगा, एंड इन्फ्लेशन बढ़ेगा भी। तो इतना सरप्लस है, कम से कम 1 साल लगेंगे इन्फ्लेशन। अभी तो इन्फ्लेशन, इंडिया का इन्फ्लेशन रिड्यूस हो गया है, लेकिन अगर आप बढ़ता भी आने वाले समय में तो भी 1 साल तक 10% तक भी पहुंचेगा तो इंटरेस्ट रेट बराबर नहीं हो सकता, इसलिए लो रहने की ज्यादा संभावना है। इंडस्ट्री में आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर, इन स्पाइट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड वेव के कारण इतना प्रॉब्लम हुआ था, फिर भी इंडस्ट्री ग्रो हो रही। क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि जब इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है, फर्स्ट ईयर प्रीमियम ग्रोथ ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस, देखिए ये Q1 का फिगर, यानी ये Q1 19, 20, 21 का आप देखेंगे तो -90%, 19% का डी ग्रोथ था। क्यों? क्योंकि मई में या जून में सेकेंड वेव आ गया था, एंड इट वाज टोटली डेसिमेटेड। लेकिन अगेन ये रिबाउंड इतना करते हैं कि देखिए आप सेकेंड क्वार्टर में रिपोर्ट कार्ड ये बताता है कि 14% का, और ओवरऑल इंडस्ट्री 16% का ग्रोथ दिखाती है इमीडिएटली जस्ट इन द सेकेंड क्वार्टर। इसका मतलब है कि पोटेंशियल
इज बैक ऑन ट्रैक और काफी अच्छे डिफरेंस से आप देखेंगे। टोटल इंडस्ट्री LIC का फीवर 51,000 करोड़ है, 23,000 करोड़ जो है प्राइवेट कंपनी का है, यानी टोटल करीब 74-75,000 करोड़ का जो फर्स्ट प्रीमियम इनकम है दैट हैज कम एंड व्हिच शोज अ ग्रोथ ऑफ 20% इन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी एंड 14% इन LIC। ग्रोथ में LIC 14%, फिर भी वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है। तो ये एक है जुलाई, अगस्त, सितंबर में आप देखेंगे तीनों क्वार्टर में वेरी वेरी हाई गुड ग्रोथ बाय LIC। सो ये एक चीजें कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा कि आपके खुद का रिपोर्ट कार्ड क्या बोलता है। आप अपने 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड थोड़ा निकालिए और पिछले 6 महीने का बिजनेस के साथ कंपेयर करके देखिए वेदर यू आर स्टिल ग्रोइंग, आपने इंडस्ट्री के ग्रोथ के साथ चल रहे हैं। जैसे गौतम भाई का यूनिट है या इधर प्रसाद जी का है, श्रीकांत जी का, जितने मेंटर्स यहाँ पे हैं, आप थोड़ा अपना ग्रोथ भी थोड़ा निकालिए कि आपकी टीम क्या इंडस्ट्री के ग्रोथ से ज्यादा चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, इन ऑल काउंट्स, FYR, इन रेवेन्यू, इन कमीशंस कितना जनरेट हुआ है, थोड़ा फिगर निकालिए, कंपेयर कीजिए कि आपका ग्रोथ अगर अच्छा है 16%, 18% से ज्यादा है तो यू शुड बी सेटिस्फाइड ऑन दिस। जब 90% इकोनॉमी इज बैक ऑन ट्रैक, न्यू नॉर्मल, इंडस्ट्री ग्रोथ इज शोइंग ग्रोथ, सो व्हाट अबाउट यू एंड योर बिजनेस लेवल, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। डिड योर इनकम रीच्ड इन प्री कोविड लेवल? इफ नॉट देन इंट्रोस्पेक्ट, आपको खुद को देखने की जरूरत है और थोड़ा सा और एग्रेसिवली अपने काम को अलाइन करना है। एक रिसेंट चेंजेस हुआ है आपको, वो मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि क्या स्मॉल चेंजेस है जिससे आपको एक नया मार्केट क्रिएट हो सकता है, स्पेशली गुजरात कैंडिडेट, इवन इन पूना में जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग जो पीस कंट्रीज में, जो कंट्री लेवल 5 में जो लोग आते हैं, उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ आप इमीडिएटली ट्रैक पे आ सकते हो, बात कर सकते हो, बिजनेस फ्लो कर सकते हो बाय सिटिंग इन इंडिया ओनली। क्योंकि लोग परेशान थे, अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन अभी आप कर सकते हो। सो कैसे कर सकते हो? पहले रूल क्या था कि मेल ऑर्डर बिजनेस में, मैं नॉर्मल अंडरराइटिंग नहीं जा रहा हूं, मेल ऑर्डर बिजनेस के लिए आपको या तो एजेंट्स को उस कंट्री में ट्रेवल करना होता था या नहीं तो, और देयर आर सर्टेन रूल्स एंड प्रैक्टिसेस, वो मेल ऑर्डर के लिए अलाउ था। दूसरा था कि सिर्फ NRIs के लिए ही मेल ऑर्डर अलाउ होता था, यानी जिसके पास इंडियन पासपोर्ट होल्डर है। तो हमें गुजरात में बड़ी प्रॉब्लम होती थी जब मैं नदियाड में था कि मेल ऑर्डर बिजनेस करने के लिए MDRT मीटिंग में जाते थे, फिर ये ढूंढते रहते थे कि यार NRI वाले कौन है, बट मैक्सिमम लोग वहां ऐसे होते थे जिसके पास फॉरेन पासपोर्ट है, OCI कार्ड होने के बाद भी हम उसको मेल ऑर्डर बिजनेस नहीं दे पाते। आपके लिए खुशखबरी है कि ये LIC ने चेंज कर दिया है। अभी OCI कार्ड वालों को भी आप, जिसको हम FNIO ट्रीट करते हैं, फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ग्रुप 5 कंट्रीज में है, जैसे दुबई भी उसी में आता है, US, UK, अच्छी बड़ी बड़ी कंट्री उसी में आता है, उसको आप मेल ऑर्डर बिजनेस बाय सिटिंग इन इंडिया दे सकते हो। एक खुशखबरी है, लेकिन इसके लिए स्ट्रेटजी बना के आपको काम करने पड़ेंगे, ऐसे चलते फिरते काम मत करो। अदरवाइज ये काम अगर आप अगले 70 दिन सिर्फ एक पे फोकस करोगे ना, तो TOTU वगैरह सब चलते फिरते आपका हो सकता है, लेकिन आपके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। दूसरी न्यूज क्या था उसमें कि mail order business is allowed to minor FNIOs of group 5 countries by virtue of birth। कभी कभी क्या होता था कि बच्चे पैदा हुए वहां पे तो उसको फॉरेन पासपोर्ट इशू हो जाता है, लेकिन फॉरेन पासपोर्ट होने के बाद भी उसको OCI कार्ड नहीं है, लेकिन वो बच्चा पैदा वहां हुआ है और उसके पेरेंट्स अगर FNIO हैं तो उसको ट्रीट करके आप दे सकते हो, FNIO बिजनेस दे सकते हो। खाली जुवेनिल FMR मस्ट है, ब्रांच मैनेजर का MHR, वो भी वीडियो के थ्रू। तीसरा, in all such proposals, juvenile FMR and video MHR by branch manager is mandatory। यानी branch manager can have a Zoom meeting with your clients, they can see and write an MHR, जिसके लिए एक फॉर्मेट है। मतलब आप ये कहना, देखो आंख बंद करके तो नहीं कर सकते ना, कुछ रूल बनाया है जो बहुत ही इजी है, आराम किया जा सकता है। आज मैं इतनी दूर बैठा हूँ आपके पास, बट फिर भी हम देखिए कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं सारा चीज, तो दिस कैन हैपन। सो ये एक चीज है जो एक बहुत न्यूज है। इसके साथ कुछ उन्होंने आपको रूल्स दिए हैं बनाने के लिए कि नाउ टेक पॉलिसी विदाउट नीड टू कम टू इंडिया थ्रू ए सिंपल प्रोसेस कॉल्ड मेल ऑर्डर बिजनेस। प्रपोजल्स नाउ कैन बी विटनेस्ड बाय एनी पर्सन। अगेन, पहले विटनेस में बड़े कॉस्ट इन्वॉल्व होता था, प्रपोजल फॉर्म पे विटनेस कराना है तो हमें उसको क्या है कि एम्बेसी जाओ, तो वो एम्बेसी में डायरेक्ट कोई विटनेस नहीं करता, उसके लिए एक अटेस्टेशन ऑफिसर होता है, वो आपको
$5, $10 या यहाँ दिराम में 50 दिराम से 100 दिराम यानी 2000 से 3000 रुपये कम से कम आपको चार्ज करते थे खाली एक साम विटनेस साइन करने के लिए, या मेडिकल एग्जामिनर्स तो वो सिग्नेचर के हिसाब से पैसा लेता है। इन्होंने कहा भैया अगर 50-50 लाख अभी नॉन मेडिकल में होता है ना, जुवेनिल एफएमआर खाली कराना है और एमएचआर करा के भेज देना है, तो विटनेस कौन करेगा? तो विटनेस कैन बी डन बाय एनी फ्रेंड सर्कल। आप जहां रहते हो कि ग्रुप होता है, उनके ग्रुप से साइन करा के हम भेज सकते हैं, दैट कैन बी विटनेस। सेकेंड, एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर इन एलोपैथी, इसमें भी रिलैक्स किया। पहले क्या होता था कि एमडी ही कर सकता है 5 साल के स्टैंडिंग के साथ, अभी है कि कोई भी एमबीबीएस है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है एलोपैथी का, वो मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकता है, कोई आपको ऑथराइज मेडिकल डायरेक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, स्पेशल रिपोर्ट्स जो है पहले होता था हमारे फॉर्मेट में, वो मैच नहीं होता था हर एक कंट्रीज में, फिर वो अलग से पैसे चार्ज करते थे क्योंकि आपके रिपोर्ट में मैं भर के दूंगा। रीडिंग्स होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन बोला है या एसबीटी 13 में जितने सारे हैं वो सारे चीजें उसके रिपोर्ट्स में होनी चाहिए। ये चीजें यहाँ के रिपोर्ट्स के हिसाब से आप पैरेलल देख लो कौन कौन सी रिपोर्ट में आती है, वो करके आपको भेज दो, मतलब इजी प्रोसेस हो गया। नो नीड टू सबमिट द रिपोर्ट्स इन आवर फॉर्मेट, बट फॉर्मेट में जो रीडिंग्स चाहिए वो वहां उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकली बहुत ही एक अच्छा चेंज है जिसको आपको समझना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। रूल तो बहुत आते हैं लेकिन फायदा कौन लेता है, समझ रहे हैं। प्लस स्पेशल क्वेश्चनर टू बी साइंड बाय एम्प्लॉय, डीन इज डिस्पेंस विद, हटा दिया इन्होंने बोला एक सिंपल एमएचआर फॉर्म एज गिवन इन एनेक्सर 1 टू बी फिल्ड बाय एजेंट्स डीओ इज ओनली रिक्वायर्ड सिटिंग इन इंडिया। आपको एमएचआर भरना है और सबमिट करना। जो मांगा था सब दे दिया, जरूरत से ज्यादा ही दे दिया है। लेकिन फ्रेंड्स ये सब इसलिए किया है कि आपका कंप्लीशन फटाफट हो। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इसको इंतजार मत करो कि भैया 2-4 साल इसको सेटल होने दो फिर करेंगे, लग जाओ ये 70 दिन के लिए। एक पहला स्ट्रेटजी आप लिख लो डायरी में, लिस्ट ऑन दोज एफएनआईओज एनआरआईज जिसके साथ आप इस 70 दिन के पीछे आप लग सकते हो। तीसरा फ्रेंड्स, जीएसटी ऑलरेडी वेबर का सर्कुलर पहले आ गया है, तो ये पहले से ही निकल गया है। सो फ्रेंड्स सेट द गोल एंड चेज देम। ये आराम से नहीं होने वाला है, ऐसे नहीं कि व्हाट्सअप किया, मैसेज किया, एंड एक को सिंसियरली स्टडी बनाओ, लिस्ट बनाओ कि इतने सारे क्लाइंट्स को मैं जानता हूं और मैं आगे आने वाला हूं प्लान डिटेल्स में, तो क्या उसको हम भेज सकते हैं। मेल ऑर्डर बिजनेस का प्रोसेस भी समझ लीजिए, एक रूटीन फ्लो चार्ट बना के आराम से बैठे बैठे आप कर सकते हो। इट्स वेरी इजी, दैट इज रूल नंबर 1, टारगेट नंबर 1, स्ट्रेटजी नंबर 1। पोस्ट कोविड के बाद फ्रेंड्स न्यू नॉर्मल हुआ है। न्यू नॉर्मल में क्या हुआ है कि फिनेंशियल प्लानिंग के ऊपर बहुत काम होने लगा है, कहीं भी देश के किसी कोने में हो इसका इम्पैक्ट हुआ है। पहला इम्पैक्ट ये हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है एक एसेंशियल असेट क्लास हो गया, मोस्ट एसेंशियल असेट क्लास। जो मेल ऑर्डर बिजनेस में आपको मालूम होगा 10 लाख से 3 करोड़ तक का सम एश्योर आप दे सकते हो, सो वो सम एश्योर उतना ही रखा है, तो 3 करोड़ एनफ है। आप 1-1, 1.5 करोड़ का आप उमंग बेचोगे तो भी हो सकता है, सो यू कैन गेट 1.5 करोड़ में 12 लाख का प्रीमियम आता है। तो ऐसे 12 लाख के 4-5 पॉलिसी अगर बेच दिया एंड 12 लाख, तो आपको 12 लाख लगते हैं ना। यहाँ के लिए 60,000 दिरहम होता है और यूएस के लिए तो कितना हुआ आप देख लो, आप यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट, इट इज नॉट इवन 25,000 या 20,000 भी नहीं हुआ, $20,000 से भी लेस होता है। तो दिस इज हाउ life insurance has become a most essential asset class just after this COVID. Ask yourself, ये essential asset class तो हुआ है, लेकिन आप लोगों में से कितने लोग पिछले 3-4 महीने में टर्म इंश्योरेंस को बेचा है? स्पेशली जब मैंने आपको जुलाई में टर्म इंश्योरेंस का यूलिप के साथ ट्रेनिंग लिया, नहीं बेचा होगा तो भी मैं माफ चलेगा, लेकिन सेल्स डिड नॉट हैपन, then at least give an honest answers to yourself. खुद को आंसर आप दो, how many clients were reached for increasing their life coverage? कितने लोगों के पास आप गए कि भैया ये सस्ता टर्म इंश्योरेंस है, 20%, 30%, एचडीएफसी महंगा हो गया, अभी और 40% महंगा होने वाला है, एलआईसी ने वही रेट्स रखा है, ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस और भी सस्ता है, चीपेस्ट प्लान है अभी बाजार में। मुझे मालूम है आपके दिमाग में घुस रहा होगा, क्योंकि मैं तो जानता हूं ना, क्योंकि आप लोग टाटा का सोच रहे होगे कि 10 साल में खत्म होता है। ये सब मार्केटिंग बेवकूफी है।
कभी भी टर्म इंश्योरेंस सिंगल प्रीमियम में और शॉर्ट टर्म में, लिमिटेड टर्म में नहीं लेना चाहिए। ये मेरा एक फाइनेंशियल एडवाइस है और टेक्निकली प्रूव करके मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि वो आप 30 साल का टर्म का 10 साल के टर्म में लेते हो फ्रेंड्स, ये डिस्काउंटेड वैल्यू पे आपको प्रीमियम मिलता है। यानी कंपनी आपसे पूरा 30 साल का ही पैसा लेता है लेकिन एडवांस में ले लेता है। हमको लगता है कि नहीं जल्दी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है पे एंड फॉरगेट। जितना छोटा इंस्टॉलमेंट हो, लंबा समय हो, कम पैसे में बड़ा कवर, यानी कभी भी बीच में होगा, अभी 10 साल के बाद होगा तो पूरा 30 साल का प्रीमियम टाटा वाले ने पहले ले लिया है। तो वो एक बेनिफिट्स कंपनी को मिलता है, कस्टमर्स को नहीं मिलता है। आप शॉर्ट टर्म प्लान में, बेनिफिट वाले प्लान में, इंडोमेंट प्लान में उसका फायदा है। टर्म इंश्योरेंस में कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं लेना चाहिए, ये मेरा एक मानना है। शॉर्ट टर्म पीपीटी, कितने लोगों को आपने लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के बारे में बात किया है? आपको बात करे हैं तो रिजल्ट जरूर मिला होगा, नहीं बात किए हो तो अपने आप को रखो कि आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो। यानी ये एक क्रॉस सेलिंग का आपको मौका है कि आदमी को, कस्टमर्स को सही ढंग से कोविड के समय इस चीजों को बताओ। दूसरे का तो छोड़ो, मुझे नहीं पता आप लोगों में से खुद का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज कितने लोगों ने बढ़ाया है। आप सोचे होंगे भैया हम तो कभी मरने वाले हैं नहीं, हमें तो कुछ होने वाला नहीं है। जितने लोग आज इस ट्रेनिंग में बैठे हो सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं तो 90 साल तक जीऊंगा, लेकिन अगले 9 घंटे का किसी को पता नहीं होता है। यही होता है इंश्योरेंस। तो जिस इंडस्ट्री में हो पहले सोचो कि कवरेज किस लिए काम करना है। एवरीबॉडी नोज कि मेरे को कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जब होता है तो आपको पास रिवर्ट करने का टाइम नहीं है। तो ये चैरिटी जो है ना खुद से शुरू होती है, पहले खुद के काम करो फ्रेंड्स। दिस इज न्यू नॉर्मल, एक्सेप्टेड बिफोर इट इज टू लेट। ये नंबर 2 पॉइंट है कि बहुत सारे लोग हैं जो टर्म इंश्योरेंस को आप एक प्रमोट कर सकते हो राइट स्ट्रेटजी के साथ। घर में घुसना मतलब टर्म इंश्योरेंस देना, ये आप एक अगर ईमानदारी से अगर रूल बना लोगे तो आप एक प्रॉपर एडवाइजर बनने के कगार पे आज से 6 महीने 1 साल में बन जाओगे। दैट इज 2। उसके बाद क्या हुआ? तीसरा हुआ कस्टमर ने हाउ मच मनी रिक्वायर फॉर इमरजेंसी फंड। लोग इमरजेंसी फंड के बराबर करने लगे ताकि इमरजेंसी में ब्रेक करके निकाल सके। अब बिजनेसमैन की बात करो, उनका इमरजेंसी फंड 3 साल के बाद आपको रिड्यूस पेड अप वैल्यू से निकल सकता है, सरेंडर वैल्यू से निकल सकता है। आप जब बिजनेस पॉलिसीज बेचते हो, 2 करोड़ 5 करोड़ का सम एश्योर्ड बेचते हो तो उसका भी इमरजेंसी फंड क्रिएट होता है। आप वो आप जो सरेंडर वैल्यू दिखाते हो ना, लिक्विडिटी लोन का अमाउंट, वो उनको इमरजेंसी फंड दिखाने के काम शुरू करो। क्योंकि रियल में जब कोविड हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने लोन लेके अपनी कंपनी सरवाइव की थी, क्योंकि सभी इंडस्ट्री टूट चुका था, कहीं पैसा नहीं था, LIC से पैसा निकल रहा था। दैट इज ऑल्सो, हम लोग इमरजेंसी फंड हमेशा सोचते हैं कि बैंक में जो पैसा रखते हैं ना 6 महीने के लिए, वही इमरजेंसी फंड होता है। वो नहीं है। आपके जो इन्वेस्टमेंट है दैट ऑल्सो क्रिएट्स एन इमरजेंसी फंड। क्या आप अपने सेल स्टॉक में ये लाते हो? दिस इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 क्या हुआ कोविड के बाद कि आदमी जो है ना असेट एलोकेशन की बात करने लग गया। वो बोलता है कि यार हमारा पैसा एक ही तरह नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अभी इसमें म्यूचुअल फंड वाले जो फेक एजेंट है ना, उन्होंने एक ही इंस्ट्रूमेंट में, एक ही मार्केट में डाइवर्सिफाई कर दिया। इसको डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का बड़ा सिंपल रिजल्ट है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपके सेविंग्स को। ये लाइन कस्टमर के पास रखो, आपके अंदर कन्विक्शन होनी चाहिए, तभी आप कस्टमर्स को म्यूचुअल फंड के हेजमनी से ब्रेक कर पाओगे। क्योंकि वो तो डेट फंड बनाता है। अभी आजकल बड़े बैलेंस एडवांटेज फंड का बाजार में बहुत चल रहा है, एंड उनको लगता है कि आपको कुछ नहीं करना है सर, हम अपने हिसाब से डेट में चले जाएंगे, डेट से इक्विटी में चले जाएंगे। भैया इतना स्मार्ट अगर हो आप, इतना अगर सब चीज बड़ा इजीली कम्युनिकेट होता है, तो एक म्यूचुअल फंड का वीडियो मैं आपको दिखाता था कि बिना आपके बोले हुए ना तो म्यूचुअल फंड एडवाइजर पैसा निकाल सकता है, फंड मैनेजर पैसा विड्रॉ कर सकता है, ना ही स्विच कर सकता है। ये 65% और 35% के रेशियो में गेम खेलते हैं और हमको बताते हैं कि बैलेंस एडवांटेज है। ये सब आपको समय आएगा, वेट फॉर कपल ऑफ मोर इयर्स। 23 के बाद आपको पता चलेगा कि जिन्होंने इस मार्केट में आज पैसा डाला है 23-24 में क्या रिटर्न होने वाला है। तो जरा वेट कीजिए। अभी तो क्या है ना, सबको हरियरी दिख रही है। तो कस्टमर्स को थोड़ा सा ब्रेक करो, उनको उनके ईगो को थोड़ा पहुंचाओ कि सर इस साल 50% मिला है, लेकिन क्या 50% सस्टेनेबल है? नहीं है। अभी समय है, प्रॉफिट बुक करो, LIC की तरफ जाओ, LIC के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में
पैसे भरो। आज देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड मार्केट वाले भी टीवी पे बैठते हैं, बोलते हैं दिस इज अ टाइम इफ यू हैव अर्न द प्रॉफिट यू कम बैक टू द डेट मार्केट, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके आप वेट करो एक अच्छे समय का फिर से एंट्री होने का। तो प्रॉफिट बुकिंग करने का मतलब है कि वो एक बढ़ावा दे रहा है कि आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट में डालो, कैपिटल गारंटीड इन्वेस्टमेंट में डालो, और वो कहाँ मिलता है? अभी LIC में मिलता है, शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक। तो ये एक एसेट एलोकेशन की बात आपको मालूम होना चाहिए। आप डिस्कस करते हो क्या? अगर आप डिस्कस करते हो तो आपको पॉलिसी मिलती होगी। आप डिस्कस नहीं करते हो, वो प्रोडक्ट लेके आलू प्याज टमाटर लेके ठेला लेके घूमने निकल चलते हो और बोलते हो भैया चिपकाता रहूं सबको, तो भैया समय बदल गया, ये न्यू नॉर्मल में आपका नहीं चलेगा। और जैसे ही एसेट एलोकेशन की बात आती है, कस्टमर्स को इतना नॉलेज नहीं है, सो एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर्स की बहुत जरूरत होती है। और मैं हमेशा आपको कोशिश करता हूं कि आप 75 तरह के ट्रेनिंग अटेंड करने के बजाय एक सही ढंग से सही मार्केट में फिनेंशियल प्लानिंग के थ्रू फिनेंशियल एडवाइजर बनने का एक सटीक इम्पार्शियल ट्रेनिंग अटेंड करो, जो बहुत हद तक कोशिश करता हूं कि आपको देने के लिए, और आपको यूटिलाइज करो। डोंट बी अ फेक काइंड ऑफ कि यहाँ भी सीख लिया वहां भी सीख लिया, होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप करते नहीं। इम्प्लीमेंटेशन इज द की। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करता है कि राइट अमाउंट ऑफ मनी इज अवेलेबल एट द राइट टाइम एट द राइट हैंड्स विद द वन फाइनेंशियल गोल्स। तो ये एक चीज है जो आपको सीखनी पड़ेगी। एडवाइस क्या है? पिरामिड। अभी पिरामिड में, एक मिनट में ये सीखा, तो पिरामिड में क्या है, सभी चीज आती है। अब LIC देखो, प्रोटेक्शन के पार्ट में आज बाजार में बादशाह की तरह चल सकता है अगर आप लोग चलाना चाहे तो। मार्केटिंग इंडस्ट्री इतना कभी ध्यान ही नहीं देता है कि हमें आई डोंट नो मतलब किस तरह की सोच से काम होती है कि घूम फिर के 2-3 प्रोडक्ट पकड़ो, उसी पे पूरा बाजार हिलाते रहो, शॉर्ट टर्म गोल। बट रियल में देखोगे तो स्टार्ट हमारी प्रोटेक्शन से, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मतलब ही होता है कि पहले आप टर्म इंश्योरेंस बेचो, उसके बाद जो होता है देन इट कम्स योर रिस्क फ्री ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, जो गारंटी रिटर्न प्लान है 3-4 या कैपिटल गारंटी रिटर्न प्लान्स हैं। ये प्लान्स को एक सुटेबल ढंग से 20 से 25%, 30% तक के शेयर्स में बिठाओ। फिर यूलिप, इतना शानदार यूलिप LIC में आया है, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको आज के समय में यूलिप में डालना है, अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मंथली क्वार्टरली करो, उससे ज्यादा का टर्म मत रखो, मंथली रखो तो बेहतर है, एंड गो इन द ग्रोथ फंड। लेकिन अगर सिंगल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप बॉन्ड फंड में डाल के रखो। दिस इज नॉट अ टाइम टू गो इन अ, बहुत करोगे, थोड़ा रिस्क लोगे तो ग्रोथ के ऊपर वाला जो बैलेंस्ड है उसमें आप डालो, या सिक्योर्ड में डालो बैलेंस्ड, एंड जो ग्रोथ है दिस इज नॉट टाइम। इसलिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी बैलेंस एडवांटेज फंड आजकल ला रहे हैं, क्योंकि वो बैलेंस फंड के साथ मिक्स होता है। सो वो आप रख सकते हो। यूलिप का बहुत डिटेल में फायदा दिलाया हूं आपको, एक्सरसाइज दिया हूं, एक बार वीडियो देख लो, आपको याद हो जाएगा। दिस इज व्हाट द रियल एडवाइस रिक्वायर फ्रॉम ए मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव। इफ यू सी दिस चार्ट, दिस पर्पल कलर सीट जो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे हमारा इंडस्ट्री टिका हुआ है, और ये इसके लिए मैंने इसको 3 भाग में बांटा। अभी देखिए कितने तरह की नीड्स आप भरपाई कर सकते हो। अगर आप प्रोटेक्शन देते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेस, डेट मैनेजमेंट, इमरजेंसी फंड, सेविंग्स में एजुकेशन सेविंग्स, रिटायरमेंट सेविंग, पर्सनल सेविंग्स, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, एंड फाइनली जब इन्वेस्टमेंट में जाते हैं जैसे स्टॉक्स, एंटीक्स, रियल एस्टेट्स, कमोडिटीज वगैरह में, वहां पे हमारा यूलिप्स फिट बैठता है। सो दिस 3 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल पिरामिड विल टेक यू इफ यू सिट विद द क्लाइंट्स। सो वेराइटी ऑफ क्लाइंट्स के साथ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्या इस पे एक्सरसाइज कर पा रहे हैं आप? क्या आपके मार्केटिंग फोल्डर्स जो आप कस्टमर के पास लेके जाते हो, क्या पहला पेज पिरामिड को लेके बताते हो? कितना टाइम स्पेंड करते हो कस्टमर के साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए? वो आपको डिराइव करेगा कि आपको कितना दूर तक आपका प्रीमियम का साइज, टिकट का साइज कितना बड़ा होता है। 5 गोल्डन मंत्र भी आपको बताया था मैंने कि हैबिट्स को बदलो थोड़ा। 3C फॉर्मूला, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। नॉलेज अपग्रेड करना पड़ेगा। नॉलेज का मतलब ये नहीं होता है कि आज के समय में प्रपोजल फॉर्म कैसे भरते हैं वो हम सीखें। आज के समय में आपको सीखना है कि एक प्रोडक्ट्स को दूसरे प्रोडक्ट के साथ कैसे कंपेयर करके पोजीशन किया जा सकता है, उसके ऊपर काम करना है। बहुत सारे ओल्ड एजेंट्स हैं, ओल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, आपके पास एग्जिस्टिंग प्लेंटी ऑफ डेटा है,
उसका माइनिंग कर पाते हैं आप? कितने डेटा माइनिंग होता है, इनोवेशंस कीजिए, आईटी को यूटिलाइज कीजिए, ऑटो ईमेल सेटअप कीजिए, ऑटो मैसेजिंग सेटअप कीजिए। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे दुनिया नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सनलाइज ईमेल्स भी जाने चाहिए कस्टमर्स को। आप उसके लिए टेक्नोलॉजी को यूज करो, कुछ पैकेजेस खरीद लो, इंडिया में बहुत सस्ता है। डेटा माइनिंग, डेटा कम्युनिकेशन विल हेल्प यू टू ग्रो योर क्लाइंट इन अ वेरी वेरी लार्ज मैनर। तभी फ्रेंड्स इस चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलो। अभी आप मोदी साहब का आपने देखा होगा, जब 100 करोड़ हुआ था वैक्सीन, तो उन्होंने एक बात की थी उसके ऊपर कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने साइंस को हर एक जगह यूज किया है, टेक्नोलॉजी को, तकनीक को, जो इनोवेशन उसको हर एक जगह यूज किया है। यानी सिर्फ वैक्सीन बनाने का नहीं है, घर घर कोने कोने पहुंचाने के सप्लाई चेन को भी यूज किया है। आप किस इंटरमीडियरीज में हो? आप LIC ने आनंदा बना दिया और हम बड़े खुश होते हैं, एक प्रपोजल कंप्लीट कर लेते हैं। भैया वो प्रपोजल कंप्लीट करने का है, आपको आपका खुद का आनंदा सॉफ्टवेयर बनना चाहिए जो कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन ऑटो मोड में एस्टेब्लिश करे, कोलैबोरेट करे कस्टमर्स को, न्यूज़लेटर्स, उसके फीडबैक, उसको है ना सर्विसिंग्स का इंफॉर्मेशन, उसको रेगुलर मार्केट अपडेट्स, ये सारी चीजें आप अपने कोने में अगर बिठाओगे तभी आप रिलेवेंट रहोगे बाजार में माय डियर फ्रेंड्स। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट? मेरी तरफ से आपसे निवेदन ये है, एक्सक्यूज को हटाओ, गेट ऑफ योर बट एंड फाइट फॉर योर ड्रीम्स। दिस इज द टाइम, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो इस दुनिया में। 70 दिन में MDRT अगर करनी है तो आपको थोड़ा सा पहले टेक्निकली गोल सेट कर लेते हैं कि हमको करना क्या है। MDRT के लिए आपको मालूम है क्या करना होता है? 7,34,000 का टारगेट है आपका, COT के लिए 22 लाख एंड 44 लाख जो है TOT के लिए। ये आपका एक जनरल फर्स्ट ईयर कमीशन का टारगेट है, प्रीमियम का भी आपको टारगेट है। आप कौन से लेवल पे हो वो आपको देखना है। सभी लोग कर सकते हैं, पर थोड़ा सा इसको मैं ड्रिल डाउन करता हूं, मैं इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूं ताकि आप इसको समझो। 70 दिन है आपके पास। अगर ये दिमाग में बैठ गया ना तो जितने लोग आज इस मीटिंग में बैठे हो सबके सब आप अपना मंजिल हासिल कर सकते हो। थोड़ा ध्यान से सुनना आप इस चीज को। 70 दिन है आपके पास एंड रियल में इस तरह के एक्सरसाइज आप डायरी में करो तो देखो फिर काम कैसे होता है। 70 दिन का मतलब है 10 वीक है आपके पास, 10 सप्ताह आपके पास है। आज से 10 सप्ताह, 10 सप्ताह में आपको देखो कि आज के दिन में आप कहाँ हो। इसलिए मैंने सुबह एक मैसेज किया था कि आप अपने DO से, ब्रांच मैनेजर से पता कर लो कि आज के दिन में वेयर आर यू टुडे, यानी आपका टारगेट कहाँ पे है। तो अगर आपका टारगेट 0 है, मान लेते जर्नी स्टार्ट ही करने वाले हो, यानी कुछ भी नहीं किया है 10 महीने, 50 बहाने हैं लेकिन भूल जाओ आप 10 महीने कुछ भी नहीं किया है, तो 10 सप्ताह में करनी है तो 10,000 कमीशन पर डे चाहिए। थोड़ा भारी लगेगा, 10,000 कैसे होगा, 10,000 कैसे होगा, लेकिन वीकली 70,000 आप कर सकते हो। कैसे होगा उसके लिए पहले माइंडसेट तैयार कीजिए कि 70,000 कमीशन लाने के लिए 2 लाख का प्रीमियम हमको चाहिए। यानी एक सप्ताह में 7 दिन में रोज 6 घंटे काम करूंगा तो 2 लाख प्रीमियम मुझे नहीं आएगा। अगर हमारे पास 2,000 क्लाइंट, 500 क्लाइंट, 1,000 फैमिली का डेटाबेस है तो डेटा माइनिंग को यूज करना पड़ेगा। भिखारी की तरह नहीं, स्मार्टली दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि भैया अभी थोड़ा पोस्ट का काम कर लेते, थोड़ा सर्विसिंग का भी काम कर लेते, थोड़ा जो है ना कोई पार्ट टाइम भी काम कर लेते हैं, थोड़ा भाई वो हेल्थ इंश्योरेंस का, मेडिक्लेम का क्लेम भी सेटल करा लेते हैं और फिर बोलेंगे कि 70,000 भी सर कमीशन LIC में तो आया नहीं सर, मैंने बहुत मेहनत किया। नहीं किया आपने मेहनत, 7 घंटे काम करते हो, 1 घंटा LIC के लिए नहीं चलेगा ना। 7 घंटे मतलब 5 से 7 घंटे रोज सिर्फ LIC में भी सिर्फ न्यू बिजनेस अगर देने को रेडी हो, ये भी पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं जब से दुबई आया हूं मैं 12 घंटे 13 घंटे रोज काम करता हूं। काम मतलब काम, आपका फुल टाइम जॉब है बाबा। आप थोड़ा सोचो क्या करते हो आप घर पे बैठ के। हमारे पास यहाँ दीपक जी बैठे हैं, पता नहीं आज आए हैं कि नहीं आए, मुझे नहीं पता। नेहल अगर आए हैं तो थोड़ा ये बोलना, दीपक भाई बैठे हैं क्या मीटिंग में?
मैं आज से 20-25 दिन, उनको थोड़ा नाराज होगा लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, 25 दिन पहले मेरी बात हुई, एंड व्हाई इट इज रिलेटेड टू एवरी वन ऑफ यू इन दिस मीटिंग। उनको बोला कि भैया क्या हुआ, कहाँ चली कहानी, सीओटी टीओटी क्या हुआ है? तो बोले कि नहीं सर, इस साल तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। फिर मैंने गौतम भाई से भी बात की थी, मैंने कहा कि देखो इसका रीजन यही है, क्योंकि साथ वो काम करने, कहाँ करना काम कर रहे हैं, विद्यानगर में बैठ के काम होता है। उनको ऑफिस में बुलाओ, सुबह 9 बजे बुलाओ, शाम को 4 बजे घर भेजो, देखो कैसे काम होता है, बिठाओ उनको टेबल पे। और मैं अब सुन रहे हैं तो उनको, नहीं सुन रहे हैं तो मैसेज पास कर देना नेहल, कि उनको बैठने को बोलो 7 घंटे 8 घंटे, और उनको बोलो कॉल करो, बैठ से मीटिंग फिक्स करो, लोगों के पास जाओ। और मुझे मालूम है उनके पास जो क्लाइंट बेस है 2 लाख प्रीमियम 7 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन में होगा। लेकिन करो तो रोज 5 घंटे 7 घंटे एक ऑफिस में जैसे काम होता है, लॉग इन लॉग आउट करके बैठ के आप अपने लिए काम करो। अगर फिक्स करोगे तो ये भी पॉसिबल है। इनकेस कुछ लोग बोलते हैं कि सर 2 लाख तो हो गया है, 5 लाख चाहिए। कल कमलेश भाई मुझे बता रहे थे कि सर इस साल तो एमडीआरटी कहाँ हुआ सर, नहीं हुआ, 2 लाख ही हुआ है, इस बार तो लगता नहीं होगा, क्योंकि जीआईसी का बिजनेस बढ़िया हुआ है, शानदार, इनकम की कमी नहीं है। मैंने कहा कल सुबह 10 बजे मिलते हैं, मैं समझाता हूँ। 2 लाख कमीशन हुआ है, 5 लाख चाहिए, यानी वीकली 50,000, 7,000 कमीशन पर डे, यानी 50,000 का वीक। और 50,000 का वीक करने के लिए फ्रेंड्स, अगर आपको एक वीक में 50,000 करना है तो क्या कर सकते हो, एक पॉलिसी 1.5 लाख प्रीमियम का चाहिए। और आजकल आनंद में जो इनकम है, जिस मार्केट में आप काम करते हो, 1.5 लाख का प्रीमियम लाना एक आदमी से इस दिवाली के त्योहार में मुश्किल है। आपके दिमाग में हो सकता है, कस्टमर में नहीं हो सकता। आपके पास तो ऐसे ऐसे क्लाइंट है, अरे 1.5 लाख का एक पॉलिसी नहीं आएगा, 2 पॉलिसी आएगी 75,000 की, 2 नहीं तो 3 पॉलिसी आएगी 50,000 प्रीमियम की। आप सेगमेंट तो बनाओ, अब बनाओ कि 50,000 प्रीमियम, 1 लाख प्रीमियम, 2 लाख प्रीमियम, 5 लाख प्रीमियम के कितने क्लाइंट्स दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि 5 लाख प्रीमियम देने वाले 25 क्लाइंट नहीं होंगे, एक क्लाइंट देगा 5 लाख, 50,000 के 10 तो मैं निकाल सकता हूं बाजार में कि नहीं, इतनी तो मुझे पावर है उस बाजार में। जिस बाजार जो आज मीटिंग में बैठे हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी एजेंट, 12 पॉलिसी वाले नहीं है। आपको आपका स्ट्रेंथ कहां पे लगा रहे हो ये सोचो। भगवान के लिए अगर आपको एलआईसी में एमडीआरटी करनी है तो 70 दिन बाकी सब चीज भूल जाओ। अगर रियली में करना है तो टीओटी सीओटी भी आपके हाथ है। ऐसे नहीं कि भैया 7 दिन में लाभ पांचन में लद्दाख भी घूमने जाऊंगा और 7 दिन काम नहीं करूंगा, वो जो भी बनने वाला है दिवाली में वो 3-4 दिन खाने में निपटाऊंगा। ऐसे नहीं चलेगा। अगर काम करना है तो काम करो पहले, अगर नहीं किया 10 मिनट, कोई भी पॉसिबल है। At your convenience, आप set your goal. Set your goal, my dear friends. Possible है। रमेश प्रजापति एक आनंद में एजेंट है गौतम भाई का, वो सीओटी कर रहा है। मुझे याद है आज से 4 साल पहले वो 2 लाख की पॉलिसी बेचता था, उससे ज्यादा समेश्योर नहीं था उसका। 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे समेश्योर होते थे। मल्टीपल पॉलिसीज लाता था, 10 पॉलिसी 2-2 लाख 5-5 लाख का, सारे नॉन मेडिकल। आज वो सीओटी कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। जो बड़े बड़े लोग बैठे उन्हें थोड़ा सोचो। वनिता तो हमारे टीओटी में टेडल एंड आई एम श्योर शी विल डेफिनेटली हिट सीओटी। गणेश को देखो, गणेश एमडीआरटी करता था, वो डबल किया, आज सीओटी कर रहा है। क्यों और नहीं पता नहीं एमके सिंह है कि नहीं है। एमके सिंह भी थोड़ा सा रास्ता भटक गया ऐसा मुझे दिखता है। फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं जो आप में वो ताकत है, आप कर सकते हो। आप सोचो कि 70 दिन में, आज से भी शुरू करूंगा। अब लिस्ट, आज घर में बैठ के पहला काम करना, लिस्ट बनाओ। 50,000 प्रीमियम का लिस्ट, 1 लाख प्रीमियम का लिस्ट, 2 लाख प्रीमियम का लिस्ट और 5 लाख के ऊपर का 10-5 लिस्ट बनाओ। एक पॉलिसी भी क्लिक होगी आपको सरपास करेगा। कभी कभी छक्का लगता है ना, आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एक बॉल पे 6 लग गया तो पूरा एवरेज शिफ्ट कर देता है। तो ऐसे सिक्सर्स वाले भी कुछ क्लाइंट बेस होने चाहिए एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी विल हैव। पूना में लोग आज बैठे हैं। पूना आपको मालूम होगा दुनिया का, इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है।
पूना सिटी, 212 कंपनी आईटी कंपनी वहां पे काम कर रही है, जबकि बैंगलोर जिसको सिलिकॉन वैली बोला जाता था इंडिया का, आज वो सिलिकॉन सिटी ऑफ महाराष्ट्र हो गया पुणे, यहाँ पे बैंगलोर से भी ज्यादा आईटी इंडस्ट्री है। कभी आप देखो कि इन विच कंट्री यू आर ओरिएंटिंग, ये घूम फिर के बस वही 5, 10, 20, 25 क्लाइंट। प्रोस्पेक्ट को स्मार्टली एग्जीक्यूट करो आज शाम से पहले। कंफर्म मी ऑन द व्हाट्सएप कि सर माय प्रोस्पेक्ट इज रेडी फॉर 70 days to achieve the target of 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, 7 lakhs। जो कोई सुन रहे हो, अगर करना है तो बहाने मत बनाओ। फिर हो सकता है बहुत पैसा है आपके पास, तो फिर तो एजेंसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन करना है तो ये आग कहीं से सुलगनी चाहिए। ऑल मेंटर्स से रिक्वेस्ट है कि इसको इंश्योर करो कि शाम तक आपके पास इनका टारगेट आ जाना चाहिए कि मैंने इतने लोगों को रीड किया है, बना लिया है। आई एम श्योर आपका जर्नी इजी हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। आप पहला प्लानिंग ये है कि नंबर्स लिखो, प्रोस्पेक्ट्स रेडी है सर। नाउ मैं बताता हूं आपकी प्लानिंग क्या होगी, आपको किस तरह से उसको अटैक करनी। सो व्हाट कुड बी द स्ट्रेटजी फॉर दैट। हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, चैलेंजेस जो होता है वो एक अपॉर्चुनिटी को जन्म देता है, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश कर रहे हो या आप चैलेंजेस में ही उलझने की कोशिश कर रहे हो। चैलेंज में उलझते जाओगे तो 50 रीजन होंगे ना काम करने के लिए, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी के भाग की तरफ भागोगे, आपके पास एक रीजन भी अगर है उस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए, तो आप उसकी तरफ भागोगे। कस्टमर को आज एश्योर रिटर्न चाहिए, अपार्ट फ्रॉम रिस्क रिटर्न एश्योर रिटर्न भी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन एंड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, ये अभी लोग समझने लग गए हैं कि भैया इंश्योरेंस भी होना चाहिए एंड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए और फिर इक्विटी मार्केट भी होना चाहिए। इंश्योरेंस वाइडली एक्सेप्टेड है, इंटरेस्ट रेट्स काफी लो है, LIC का रेट बड़े कॉम्पिटिटिव है एंड आगे भी लो रहने वाले। इट्स नन अदर देन, कौन देगा ये सारे चीज, कहाँ मिल सकता है एक ही प्लेटफॉर्म पे माय डियर फ्रेंड्स, इज नथिंग एट LIC ऑफ इंडिया। बट कैसे? तो सबसे पहले हमको ये देखते हैं कि आप देखो कहाँ पैसे आ रहे हैं, कितनी बैंक FDs फुल हो रही है, बैंक डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी मार्केट, रियल एस्टेट इज अगेन कमिंग बैक टू सीन, यू नो। जबकि मैं नहीं प्रेफर करता हूं कि रियल एस्टेट इज राइट इन्वेस्टमेंट इन करेंट मार्केट, लेकिन फिर भी रहने के लिए, घर लेने के लिए आपको ठीक है, आपको दिस इज अ टाइम यू कैन इन्वेस्ट, लो इंटरेस्ट रेट पे आपको ब्याज मिलता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रियल एस्टेट नहीं है, लेकिन लोगों के पास पैसा है, सरप्लस है, रोटेट हो रही है। तो सिंगल प्रीमियम में आपके पास कितने प्रोडक्ट है, देखो। एक बहुत ही सदाबहार मेरा फेवरेट स्कीम निवेश प्लस, जो लोग इक्विटी से फायदा लेना चाहते हैं, आपको लिक्विडिटी बहुत फास्ट चाहिए, 5 साल में मुझे पैसे निकालने पड़ेंगे, तो निवेश प्लस इज द बेस्ट। बॉन्ड में रखो, बीच में मौका मिले तो बैलेंस सिक्योर ग्रोथ में स्विच हो सकते हो। जीवन शांति लिक्विडिटी के लिए के साथ साथ अगर लाइफ लॉन्ग गारंटेड रिटर्न चाहिए, आज भी बहुत ही उम्दा स्कीम है। आज लोग, और आपके पास तो लाइव है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अक्षय बेच रहे थे, पुराने शांति बेचे, 7.5% से घट के 5% पे आए। आप लाइव दिखाओ, वही कस्टमर्स का टेस्टिमोनियल बनाओ, उसी कस्टमर से उसके पॉलिसी उसको दिखाओ और ये फिर से वापस बेचो। बट इसके लिए स्ट्रेटजी बनाओ। करोड़ों वाले कहाँ गए हमारे वो पुराने दिन, 10 करोड़ प्रीमियम लाने वाले लोग आज बोलते हैं क्या कि सर कुछ भी नहीं हो रहा है, बाहर जाने का मन नहीं करता है। जरा सोचो समझो, कौन सी दुनिया में हो आप। क्यों? क्योंकि आपको कंफर्ट से बाहर निकलने में डर लगता है, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आपको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि होने वाला कुछ भी नहीं है। जीवन अक्षर 7 भी आपके पास उपलब्ध है। दिस इज ऑल्सो फॉर अ वेरी वेरी गुड प्लान विद द लिक्विडिटी ऑप्शन, सरेंडर ऑप्शन। पहले बोलते थे सर सरेंडर ऑप्शन आएगा तो 100 करोड़ प्रीमियम मैं करूंगा, मैं अकेले ब्रांच का टारगेट कर दूंगा। अरे भैया आ गया, कब करोगे? मैं तो 75 करोड़ पे छोड़ के आया था, मैं नदियाड 1 को और 40-42 करोड़ पे आनंद 2 को। वो 30 करोड़ भी पहुंचने में उनको क्रॉलिंग करनी पड़ रही है। 30 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़ में सरेंडर हो रहा है। क्यों? सारे और ऑब्स्ट्रक्टेड वाले प्रोडक्ट ओपन प्रोडक्ट हो गए हैं, अभी क्यों नहीं बेच पाते हैं आप? एंड ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ LIC's बचत प्लस, दिस इज ऑल्सो फ्रेंड्स HNI सेगमेंट में आज भी मैं बोलता हूं बचत प्लस बहुत बढ़िया रिटर्न है। FMP सेगमेंट्स में इंश्योरेंस के साथ, टैक्स फ्री रिटर्न के साथ
10 गुना 2 4.5% का गारंटी रिटर्न है। टैक्स को ऐड करोगे और लॉयल्टी एडिशन अगर थोड़ा सा भी ऐड करोगे तो 6%। आई थिंक इट्स राइट इन्वेस्टमेंट्स फॉर अ लार्जर ग्रुप हैविंग लाइफ कवर। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है। मैं प्लान पे नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि पोजीशन करना आपको है। बैंक एफडीज पोस्ट स्कीम लाइक टीडी केवीपी के सामने रिप्लेस करो 917 को। इसको जितने भी श्योर इवेंट्स हैं, एजुकेशन, मैरिज, एक टाइम डालना है, किसी को री इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म गोल है, गोल बेस्ड प्लानिंग इज द नीड बेस्ड आवर। कुछ लोग जो है ना 10 लाख 5 लाख 20 लाख बोलते हैं सर नहीं मैं बहुत बेचता हूँ 915। कितना बेचे हो? 10 लाख। केतन भाई बैठे यहाँ पे, केतन भाई 4 साल में कितने करोड़ प्रीमियम लाए थे? आप थोड़ा सा काउंट करके बताइए। नदियाड डिवीजन के 10 ब्रांच का टारगेट होगा जो ये 4 साल में प्रीमियम लाए होंगे। मेरे हिसाब से कम 20-22 करोड़ का प्रीमियम लाए थे अगर मेरा 4 साल का टेन्योर जोड़ लिया जाए तो क्यों नहीं एक एजेंट कर सकता है भैया। एक डीओ ग्रुप में आज गौतम भाई का यूनिट 25 करोड़ 30 करोड़ का प्रीमियम नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में फॉल्ट है। वो थोड़ा सा इनको हिलाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भैया सब जगह मत भागो, जो स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ के पीछे भागो, वहां पे पोजीशन करो। देयर आर इवेंट्स व्हिच कैन हैपन। पैसों की कमी नहीं है, बहुत पैसा है, बट इट रिक्वायर्स सम एग्रेसिव राइट स्ट्रेटजी एट अ राइट टाइम। दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड। बहुत सारे स्कीम्स हैं। देखो आज मैं आपको एक सिंपली देता हूं एक एग्जांपल। सेम बोनस रेट्स के साथ 10 साल 16 साल 21 साल 25 साल में 10 लाख का 1350 का इंश्योरेंस कवर है, 19 लाख रुपया मिलता है, 29 लाख मिलता है, 43 लाख मिलता है, 62 मिलता है, IRR 7% है। कौन एफडी देता है आज मुझे बताओ? गिव मी वन एफडी इज गिविंग प्लान नियर टू दिस रिटर्न। बचत प्लस का देखो आप, 500 रुपये का लॉयल्टी एडिशन पकड़ा है, 1000 भी नहीं पकड़ा है, 500 को पकड़ते हो 6.76%। लॉयल्टी हटा दो तो 5% का रिटर्न होता है। कौन आज के डेट में गारंटेड? ये ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है ये, यानी ये 10 गुना का इंश्योरेंस भी है, यानी 5 लाख भरा तो 50 लाख का इंश्योरेंस है। अगर वो 30% के ब्रैकेट में है तो उसको 10% का रिटर्न है। आज कभी जाके देखो डेट मार्केट में रिटर्न क्या है? 4%। 5 को म्यूचुअल फंड वालों को बोलो कि आज के समय में मैं डेट मार्केट में म्यूचुअल फंड में डालूंगा तो क्या रिटर्न मिलेगा? 5%, 4.5%। ये रिटर्न है। हम यहाँ पे 6% और टैक्स फ्री के साथ अगर देखा जाए तो 10%। अगर 50 लाख से 1 करोड़ का किसी का इनकम है तो 10% का रिटर्न है। अगर 10 से 50 लाख है तो 9.83 का। अगर 5 से 10 लाख का इनकम है वो तो होगा ही, क्योंकि 25 लाख का मैच्योरिटी दे रहा हूं तो आपको 8% का रिटर्न। कौन बैंक दे रहा है? अब समझाओ, कुछ भी झूठा नहीं लिखा हूं मैं यहाँ पे। प्री टैक्स पोस्ट टैक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। और यही बाजार का अभी डिफरेंट सिनेरियो है। जो 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ मुंबई में प्रीमियम आता है वो कौन लाता है? इसी टॉपिक पे लाता है जो आज 5 साल पहले से मैं समझा रहा हूं। आपके अंदर वो कन्विक्शन तो आया, बात तो करो एक कस्टमर से इस टॉपिक पे। कभी कभार टच कर लेते हो। इसी पे बात करनी है आपको, इसी पे टैक्स के साथ। कोई पूछता है कितना रिटर्न मिलता है, बोलते हो 5, कोई बोलता है 5%, कोई बोलता है 6%, कोई बोलता है 7%। रिटर्न रियल में अगर वो 10 से 50 लाख का है तो 9.83। अब बोलो कन्विक्शन के साथ। क्यों? क्योंकि 25 लाख पे टैक्स तो लगेगा कि नहीं उसको 30%। अब देखो कैसे रिजल्ट नहीं आता है। झूठ नहीं बोलना है लेकिन सच बोलना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। सच नहीं बोलोगे तो आपका फंड नहीं बढ़ेगा। आपको क्या लगता है 1 आध करोड़ प्रीमियम लाना मुश्किल है आज के समय में? 10-10 लाख के 10 लोगों को पकड़ो, केवीपी वालों को शिफ्ट करो, कितने लोगों को शिफ्ट करो, 10 साल तो ऐसे निकल जाते। बचत प्लस में तो 5 साल का ही टर्म भी है। आप रिक्वेस्ट करो, चेंज करो, डायनामिक्स को बदलो फ्रेंड्स। आपको मार्केट में 1-1.5 करोड़ प्रीमियम सिंगल और 20-25 लाख नॉन सिंगल प्रीमियम आराम से 70 दिन में कर सकते हो। लेकिन सच बोलना पड़ेगा, सच को प्रमाण दिखाने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग बोलते हैं भैया LIC है, ये तो सूरज है चमकता रहता है, लेकिन चमकाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया देखो सूरज चमकता कैसे। अगेन चॉइस आपके ऊपर है माय डियर फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला नंबर 4 था। पहला मेल ऑर्डर बिजनेस का था, टर्म इंश्योरेंस का था, 917 था, एंड ये आपको बचत प्लस है। लेकिन सच बोलो, इतना हो गया सिंगल प्रीमियम प्लस। मैं चाहता हूं कि 917 जिसको पहले बेचा है, अक्षय पहले बेचा है, उसके टेस्टिमोनियल्स बनाओ ना, उसका सर्टिफिकेट बनाओ, उससे लिख के लो, बोलो डियर मिस्टर सो एंड सो,
I'm happy to share that I have purchased Jeevan Akshaya 6 in year 2010, 12, 15 and still receiving 12%, 8%, 7% return on this scheme in my account every month. और वो सर्टिफिकेट को यूज करो उसको वापस बेचने के लिए या किसी और को बेचने के लिए, समझो. दिस इज जस्ट एन एवरेजिंग ऑफ. और ये बाजार में देखो बिकता है. आज देखिए यहाँ एक्सपो चल रहा है, क्या मार्केटिंग आइडियाज है इनके. अब देखो कौन से चैनल्स पे ये टेस्टिमोनियल्स क्रिएट करते हैं. लोग तुरंत एक्सपो के फोटो पोस्ट हो रहे हैं, वो फोटो रीट्वीट हो रहे हैं. कितनी सारी चीजें कहाँ कहाँ जहां भी जाएंगे पॉपअप्स हो रहे हैं, लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं. टेस्टिमोनियल्स मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हथियार है जिसको यूज करो. और बहुत सारे लोग आपके ग्रुप में बैठे हैं. वनीता के कई सारे क्लाइंट है, गणेश के पुराने क्लाइंट है, जिसको आपने शांति लक्ष्य अक्षय बेचा है, उसका टेस्टिमोनियल बनाओ एंड उसको यूज करो. फ्रेंड्स, बेस्ट रेट ऑफ एन्युटीज आइसिंग ऑन द केक. ग्रैब, इट्स नाउ और नेवर. दिस इज व्हाट आई कैन गिव यू ऑन ए सिंगल प्रीमियम. बड़ा सोचो, 1 करोड़ के ऊपर सोचो. अब देखो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन बड़ा सोचना पड़ेगा तभी पॉसिबल. नो कम आते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि 50,000 कमीशन लाना है और आपको 1.25 लाख का प्रीमियम, 1.5 लाख का प्रीमियम बेचना है, तो कैसे बिकेगा? कौन से स्कीम्स में बिक सकती है? 1-2 स्कीम हो ना. जब हम ब्रांच मैनेजर थे नदियाड में, तुम्हारे पास गिनती के 2 स्कीम थे. पहले साल तो स्कीम ही नहीं था, फिर भी हमने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड काम कर रहे थे. अब तो इतने स्कीम है, लेकिन समझना तो आना चाहिए आपको. कोशिश तो करो नॉलेज बढ़ाने की, कौन स्कीम कहाँ फिट हो सकती है. मुझे पता है 50 ट्रेनिंग अटेंड करते हो. कस्टमर को गारंटेड रिटर्न चाहिए तो गारंटेड मिलेगा. कैपिटल गारंटेड रिटर्न चाहिए, यानी जो पैसा भरा वो लूटना नहीं चाहिए, तो रिटर्न मिलेगा. कस्टमर को टैक्स फ्री रिटर्न चाहिए, वो मिलेगा. कस्टमर की 3 प्रायोरिटीज, ये 3 प्रायोरिटी पे पूरा मार्केट टिका हुआ है आज के डेट में. एंड जब भी HNI से आप बात करने जाते हो, ये 3 चीज बोलो सर हम क्या देते हैं LIC में, क्या मिलेगा आपको? एक तो गारंटेड रिटर्न मिलेगा, जो प्लान गारंटेड है. जो बोनस वाली है उसमें कैपिटल गारंटेड रिटर्न दे रहा हूँ, सो डे 1 से सम एश्योर गारंटेड है, प्लस सारा रिटर्न टैक्स फ्री है सर. वो आपकी टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा देती है. 3 प्रायोरिटी ही आपको बाजार में किसी भी दूसरी प्रोडक्ट से अलग करता है. सो जब भी आप पोजीशन करते हो तो इस तीनों प्रायोरिटी के साथ पोजीशन करो, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ LIC वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोलेंगे. आपको अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करना है कस्टमर के सामने. कितनी मीटिंग्स करते हो आप, कितने कॉल्स करते हो आप, मुझे ये बताओ. आजकल तो जमाना ऐसा हो गया कि व्हाट्सएप पे सोचते हो क्या पूरी दुनिया चल रही है. 4 बार व्हाट्सएप पे मैसेज किया, रिप्लाई नहीं किया तो उसको काट देते हो लिस्ट. ऐसे नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होता है. सो गारंटेड स्कीम में क्या क्या स्कीम है बताइए मुझे. जीवन उमंग है, बहुत ही सदाबहार स्कीम. बीमा श्री है, शॉर्ट टर्म कैपिटल क्रिएशंस डिफरेंट नीड्स के हिसाब से. जीवन शिरोमणि है HNI के लिए, बड़ा टिकट साइज के लिए. आज भी बहुत बढ़िया स्कीम है, आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर करोगे तो ये एक बहुत बड़ा स्कीम है HNI के लिए. जैसे आप मेल ऑर्डर बिजनेस में प्रोडक्ट स्कीम है तो आप बेचो. जितने लोग बैठे हैं US UK में उनको समझाओ. -0.5% US$ में रिटर्न है आज के डेट में, -0.5. यहाँ पे FD का रिटर्न 0.5% मिलता है, डॉलर में 0.5% का रिटर्न है. इसमें जीवन शिरोमणि में 5% गारंटेड बोनस के साथ रिटर्न है, इंश्योरेंस के साथ, टैक्स फ्री के साथ, क्रिटिकल इलनेस के साथ, रिपेट्रेशन वैल्यू के साथ. यानी आप वो कस्टमर यहाँ से US भी पैसा ले जाएगा तो वहां पे भी उसको टैक्स नहीं लगेगा. बचत प्लस है जिसमें ऑल्सो गारंटेड रिटर्न, मेच्योरिटी सम एश्योर इज गारंटेड, वो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट है, प्लस लॉयल्टी एडिशन है. कैपिटल गारंटेड में क्या है? लाभ. सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कोई स्कीम ही नहीं है आज के डेट में वैसे देखा जाए. लक्ष्य, चिल्ड्रन की बात करो तो लक्ष्य आपके पास, और कुछ नहीं तो इंडोमेंट तो अभी भी है. 914 अभी भी कुछ प्लान नहीं समझ में आता है तो ये इंडोमेंट बेच सकते हो, बट इंडोमेंट से बेहतर और भी सारे स्कीम्स है जिसको बेचा जा सकता है. बचत प्लस, बीमा श्री, शिरोमणि with a hook of guaranteed bonus, more flexible term, HNI plans is the need of the hour, my dear friends. जब भी आप guaranteed returns की प्लान करते हो तो ये 3 स्कीम्स इमीडिएट दिमाग में आता है. क्या आप इस पे फोकस कर रहे हो?
HNI जो NRIs है ना, देखो कभी कभी NRIs लोग उमंग प्रेफर नहीं करते हैं, उसका रीजन दो है। कुछ लोग फॉरेन में ही रहना चाहते हैं, और फॉरेन में जो सेटलमेंट की बात करता है वो शायद इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा रिटायरमेंट के हिसाब से। उसका दो रीजन है। एक रीजन है कि वो सोचता है कि करेंसी डेप्रिशिएट इतना हो जाता है कि हमें उसका खास फायदा यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन जो लोग इंडिया वापस आना चाहते हो, चाहते हैं कि आज 10 साल 15 साल काम करेंगे फिर इंडिया आएंगे, उनके लिए वो सबसे बेहतरीन स्कीम है। दैट इज नंबर वन। लेकिन जिसके लिए उमंग नहीं है उसके लिए आप बचत प्लस बेचो, बीमा श्री बेचो, शिरोमणि बेचो, गिविंग गुड टैक्स फ्री रिटर्न, रिपीटेबल ऑप्शन है, तो आपको कभी भी वो एनआरई से इन्वेस्ट करो, एनआरई में मैच्योरिटी लो तो वो पैसा वापस लाया जा सकता है। तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न के साथ, सस्ता इंश्योरेंस की वैल्यू के साथ आप एनआरआई को भी टारगेट कर सकते हो। Forget about the NRIs, you have a plenty of Indian clients who has a plenty of money, लेकिन राइट टिकट बेचो। ये टाटा, ये HDFC वाले क्यों बेचते हैं? उस प्रोडक्ट में कितना मैंने वाश किया हुआ है, बेवकूफ बनाते हैं, बट फिर भी बेच लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी नब्ज पकड़ते हैं, और आप लोग अपना नब्ज पकड़ते हो और आप अपने नब्ज से कस्टमर के नब्ज को जोड़ते रहते हो। नहीं नहीं, देखो ये बहुत बढ़िया ऐप ले लो, अरे उसका नब्ज पकड़ो, उसके कौन से बटन दबाने से आपका प्रोडक्ट बिकेगा, वो समझने की कोशिश है। सो क्विकली विल रैक अप शिरोमणि फर्स्ट HNI प्लान है। एक बहुत ही उम्दा स्कीम है। आप इसके ऊपर आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव वर्क, बट क्विकली आई विल जस्ट गिव यू इस प्लान में है क्या। पहले तो इसमें लाइफ एंड हेल्थ बेनिफिट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अगर आपको कुछ अच्छी लगती है, कस्टमर्स को अगर पॉपअप करके भेजना चाहते हो आप। 1 करोड़ का मिनिमम सम एश्योर्ड है, तो HNI को ही टारगेट करना है, छोटे मोटे कस्टमर्स को नहीं करना है। तो सोच है ना, HNI की सोच का मतलब होता है कि वो मार्केट समझता है, इंटरेस्ट रेट समझता है, गारंटेड वैल्यू समझता है, टैक्स फ्री रिटर्न समझता है। वो 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेगा तो पक्का 30%, 31-32% वाले ब्रैकेट में होगा। तो उसको हमेशा प्री टैक्स पोस्ट टैक्स का वैल्यू दिखाने के लिए आपका माइंडसेट होना चाहिए। ये 4% 5% में मत घूमो, वो 10-12% बैठता है उनके लिए, जब अगर वो आप इक्वल कंपेयर करेगा तो। क्रिटिकल इलनेस इसलिए दिया है क्योंकि जो HNI लोग हैं वो हमेशा एक अलग से क्रिटिकल इलनेस खरीदते हैं। ये हम एक NRI में भी, यहाँ पे भी देखोगे हम लोग टर्म इंश्योरेंस बेचते हैं, क्रिटिकल इलनेस बाय डिफॉल्ट देना ही होता है, वो लेते ही लेते हैं। सो इंडिया में सस्ता है, इनबिल्ट है इस प्रोडक्ट के साथ। मेडिकल सेकेंड ओपिनियन एक इंटरनेशनल डोमेस्टिक कहीं भी दिया जा सकता है। इसकी फैसिलिटीज है जो HNIs लोग लेते हैं। कभी भी जब ऐसे बड़े HNIs हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनको क्या लगता है आपको कि उनको बीमार होता है तो उसका एक कोई फिजिशियन घर वाला देखता है, वो 2-3 डॉक्टर के साथ संपर्क करता है। LIC भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक इंटरनेशनल डॉक्टर के साथ संपर्क करने की फैसिलिटी देगा। प्रीमियम डिफरमेंट ऑप्शंस भी दिया गया है, क्लेम विदाउट इंटरेस्ट। और क्या है, इंस्टॉलमेंट में डेथ बेनिफिट ले सकते हैं। आपके लिए हायर कमीशन लास्ट ईयर में दिया गया है ताकि आप संभाल के रख सको इसको। ये भी 1 करोड़ का एक्स्ट्रा मिलेगा ओवर एंड अबव अदर पॉलिसीज। गारंटेड एडिशन ड्यूरिंग PPTs है, लॉयल्टी एडिशन आफ्टर 5 years है, पेड अप वैल्यू है। 1 साल का भी प्रीमियम भरता है तो भी पॉलिसी प्रोपोर्शनेट पेड अप वैल्यू में आता है। प्रोपोर्शनेट SBN इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट भी होगा, यानी पेड अप वैल्यू अगर 10 साल का प्रीमियम है तो 1 साल के बाद वो 10 लाख हो जाता है। जनरल कंडीशन देखेंगे तो बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एज ब्रैकेट है, 18 years कंप्लीटेड से लेके मैक्सिमम एंट्री देखो आप 55, 51, 48, 45 तक के डिफरेंट टर्म में मिलते हैं। 1 करोड़ नो लिमिट बेसिक सम एश्योर्ड है, 4 टर्म है। बेनिफिट क्या है? मनी बैक मिलता है लास्ट में, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, पेमेंट की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, ये एक अच्छा है। गारंटेड बोनस है इसके साथ, 5 साल में $50 है, उसके बाद $55 है। अब देखिए बोनस धीरे धीरे कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि GSEC रेट्स रिड्यूस हो रहा है। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट 50-55 रुपये में आज भी मिल रहा है आपको, तो आप इसको उम्दा समझिए। 4 साल पहले शिरोमणि था तब भी 50 था, आज भी 50 में ही मिल रहा है, प्रीमियम बढ़ा नहीं है। तो ये एक सही समय है, आप शिरोमणि को पुश कर सकते हो एट ए राइट स्ट्रेटेजी। GSEC का रिटर्न लेस देन 6% है और ये भी आपको 6% के आसपास गारंटी रिटर्न दे रहा है, तो आप आराम से इसको पुश कर सकते हैं। 5 साल के बाद लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा, क्योंकि इसमें डेथ क्लेम रेशियो हमेशा अच्छा रहेगा अंडरराइटिंग का, तो लॉयल्टी एडिशन विल बी वेरी वेरी गुड। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट जो मैंने आपको बताया है कि 15 क्रिटिकल इलनेस कवर्ड है, बड़े बड़े सभी डिजीज है इसमें एक्सेप्ट कैंसर। कैंसर इज ऑल्सो कवर्ड इन सम पार्ट। 10% बेसिक सम एश्योर्ड इज पेएबल ऑन डायग्नोसिस ऑफ नॉट रियम्बर्समेंट। ये डायग्नोसिस हुआ 10% मिल जाएगा आपको। प्रीमियम 2 साल के लिए डिफर हो जाता है विदाउट इंटरेस्ट।
वंस इन ए पॉलिसी टर्म आपको डिफरेंट मेडिकल ओपिनियन भी ले सकते हो विद द नो कॉस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, पेड अप जस्ट आफ्टर 1 ईयर हो जाता है, यानी आदमी को लॉस नहीं होता है। एटीसी 1010D दोनों इसमें मिलता है। ये देखिए एक जनरल कैलकुलेशंस देखिए आप, ये इसमें मैं बताता हूं आपको, ये एक कैलकुलेशन है 50 lakhs ऑफ रेगुलर प्रीमियम, 50 लाख का रेगुलर प्रीमियम है। ये पॉलिसी एग्जैक्टली बिकी है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, नदयार्ड में ही बिकी है। सेम कैलकुलेशंस हैं, आप देखिए ये टर्म है 20 साल का टर्म है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, 10, 14, 10, 16, 12, और क्या दिखा के मैंने बेचा था वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 45, 4.5 करोड़ का, 5 करोड़ का, 6.5 करोड़ का, 7 करोड़ का, यानी 50 लाख के प्रीमियम में ये इसका प्रीमियम है, ये इसकी मैच्योरिटी है। देखिए रिटर्न कितना आ रहा है यहाँ पे 4.63 IRR, जो गारंटेड रिटर्न है, लॉयल्टी एडिशन नहीं है, यानी बिना लॉयल्टी एडिशन का 4.63 हमने डाला है। जो टैक्स इक्विवेलेंट कितना हो रहा है मालूम है आपको, क्योंकि 34% के ब्रैकेट में होगा जो आदमी को 7 करोड़ 8 करोड़ मिलने वाला है, और क्रिटिकल इलनेस 70 लाख का यहाँ पे मिल रहा है। देखिए 7.33, 7.61, 7.7, यानी 7.5% का एवरेज रिटर्न टैक्स फ्री जेब में अगर आता है विद द 10, मतलब इतना इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस के साथ, क्रिटिकल इलनेस की वैल्यू और इंश्योरेंस की वैल्यू भी अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये रिटर्न और भी ऊपर जाता है। आज के समय में फ्रेंड्स गारंटेड रिटर्न 7% का कौन सी कंपनी देता है? HDFC का इतना प्रीमियम जा रहा है, आपको रिटर्न देखियो 5-5.5% से ज्यादा का रिटर्न नहीं है। थोड़ा इन चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड करो कस्टमर के पास जब भी आप बैठते हो विद ऑल दोज बेनिफिट्स, है ना। वहां तो इंश्योरेंस में कैसे घपला करता है, आप कभी देखे होंगे, वो कभी कभी क्या करते हैं कि पॉलिसी टर्म भले लाइफ लॉन्ग बोलते हैं हम रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन पॉलिसी टर्म 10 कर देते हैं और लाइफ कवर 10 साल तक ही मिलता है। 11 साल से अगले 30 साल तक वो रिटर्न दे रहे हैं इनकम, कोई लाइफ कवर नहीं है, डेथ होने पे वो इनकम ही उनको वाइफ को मिलता है, यानी इंश्योरेंस फिनिश। हमारे यहाँ बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। अगर आप लॉयल्टी एडिशंस का फिगर जो मैंने आपको बताया था, अगर वो आप अगर यूज करते हो तो देखो रिटर्न 11% 12% के करीब बैठता है। ये चार्ट दिखा के हमने पॉलिसी बेची है, आप भी बेच सकते हो अगर आप में अंदर वो कन्विक्शन है तो, अगर आप बेचना चाहो तो। मेरा सोचना ये है, ये these returns with the zero loyalty additions. Friends, अभी how to where and how to position this, prepare a list of super HNI businessmen. आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, बिजनेसमैन होंगे। दीपक भाई किसी के साथ एक कंसोर्टियम कर रहे थे, ज्वाइंट हो रहे थे, पता नहीं वो हुआ कि नहीं हुआ। गणेश, वनिता, आई नो, फिरोज, देयर आर मेनी क्लाइंट इन पुणे व्हिच यू कैन अप्रोच विद दिस सुपर HNI प्लान। आप प्रमोट करो, नॉट जीवन शिरोमणि एज ए सुपर HNI businessman plan of LIC in India just recently launched. Add clients which has very high investment in mutual fund and equity, उसको पकड़ो आप, क्योंकि उसको रियल वर्थ इसका समझेगा 11% का रिटर्न। Persuasion of meeting should be on 3 listed priorities. जब भी इसके साथ मीटिंग करोगे तो 3 चीजों को पहले फोकस करो। पहला चीज क्या? 100% टैक्स फ्री कैपिटल सिक्योरिटी गारंटी रिटर्न। दूसरा क्या? कंपैरिजन, यानी गारंटेड टैक्स फ्री एंड 100% कैपिटल सिक्योरिटी। ये 3 प्रायोरिटीज आपकी होनी चाहिए जब भी सुपर HNI से बात करो। ये रिटर्न बाद में आती है कैलकुलेशंस, पहले इन चीजों को प्रमोट करो तभी वो दूसरे से डिस्टिंग्विश करेगा। फिर कंपैरिजन करो अपने प्रोडक्ट्स को अदर इंस्ट्रूमेंट के साथ जहां पे वो इन्वेस्ट करता है। डोंट बी पुसी, उनको बोलो दिस इज द बेस्ट वी हैव, रेस्ट चॉइस इज योर्स, क्योंकि इससे बेहतरीन आपके लिए कोई दूसरा स्कीम बाजार में कोई दे नहीं सकता है। इतना बोल के आप छोड़ो, लेट देम, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन द सेम, मतलब बहुत सारे लोग इसको अंडरस्टैंड करने लगे हैं अगर रियल में उनको ठेस पहुंचाओ, उनको समझाओ कि इस तरह से। विद दिस प्लान रेदर हेल्प क्लाइंट्स टू परचेज, उसको पुशी नहीं होना है, उसको एजुकेट करो कि आपके सही पैसे का सही जगह इस्तेमाल करने का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। पेशेंस, परसिस्टेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कोर स्किल्स, ये 3 चीज बहुत आपको काम आने वाले हैं, क्योंकि जब बड़ा पॉलिसी बेचते हो ना, एक बार में नहीं बिकता है, ये थोड़ा ध्यान रखो, बार बार उसके पास जाना पड़ेगा। परसिस्टेंस मतलब कंसिस्टेंसी के साथ आपको उसके साथ उसके हर एक ऑब्जेक्शंस को एड्रेस करने की कोशिश करो, और उसके लिए आपको कोर स्किल्स होना चाहिए। ये वो मैजिशियन का सॉफ्टवेयर का प्रिंट आउट लेके जाओगे तो नहीं बिकेगा ये प्लान। थोड़ा सा अपना कुछ बना के लेके जाओ, कुछ एक PPTs बना लो 5-7 पेज का, उसको उसका प्रिंट आउट दो कि इसमें क्या यूनिक है, क्या ये दूसरे से डिस्टिंग्विश करता है, तभी आपको ये होगा। 10 क्लाइंट्स एवरी क्वार्टर, यानी 70 दिन में अगर 10 क्लाइंट भी आप लोग निकाल पाते हो और एक पॉलिसी भी बिकता है, आपका MDRT का 30% काम इजी हो सकता है। आप जरा सोचो इन चीजों। This can make your life very very easy
10 लोग तो निकाल सकते हो, निकाल के कोशिश तो करो, रिजल्ट नहीं आएगा तो भी चलेगा, अगले साल की प्रोस्पेक्टिंग अच्छी हो जाएगी। रिमेंबर, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट वेदर सेल्स क्लोज्ड और नॉट, अटेम्प्ट बहुत जरूरी है। अटेम्प्ट ऑफ दिस प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन a city like पुणे, इवन अहमदाबाद, बड़ौदा, आनंद, नदियाद, पैसों की कमी नहीं है, तो इसको पोजीशन करो। देखो गुड न्यूज क्या था यहाँ पे, समीर भाई ने 1,60,00,000 प्रीमियम का पॉलिसी बेचा है, 4 जीवन शिरोमणि बेचा था, जो कोटेशन मैंने आपको दिखाया सेम वही, वो है कि नहीं आज पता नहीं। आई हैव आल्सो इनवाइटेड हिम फॉर द मीटिंग, आई डोंट नो, ही हैज नॉट जॉइन। सो कहीं ना कहीं देखो ये नदियाड का पोटेंशियल है, क्यों नहीं हो सकता है आनंद में, क्यों नहीं हो सकता है पुणे में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, मुंबई में। 1,60,00,000 का प्रीमियम की बात कर रहा हूं, अगर आप सामेश्वर की बात करोगे तो 30 करोड़ सामेश्वर का है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज नहीं हुआ क्योंकि उनके ब्रांच और उनका डिवीजन की हालत ऐसी है कि कोई ब्रेकिंग नहीं हुआ, अदरवाइज ये उस साल का सबसे बड़ी पॉलिसी होगी इंडिया में। 30 करोड़ सामेश्वर की पॉलिसी जीवन शिरोमणि का बिका था, लेकिन एनीवे दैट्स लिविंग अपार्ट फ्रेंड्स, आप भी कर सकते हो। दूसरा, जैसे शिरोमणि की बात आती है तो आपका क्लाइंट बेस रिड्यूस हो जाता है, लेकिन दूसरी एक प्लान है सेम शिरोमणि लाइक प्लान, वो है बीमा श्री। सो मिडिल क्लास, जैसे ही आपका बड़ा सेगमेंट खत्म होता है, उसके 10 क्लाइंट है, इसके आप 30 क्लाइंट बना सकते हो, जहां पे एवरेज 1 लाख का प्रीमियम आप सेट करके कस्टमर के लिस्ट बनाओ, जिसको गारंटेड रिटर्न चाहिए, टैक्स फ्री रिटर्न चाहिए, यही माइंडसेट से चाहिए, उसको आप बीमा श्री दे दो, उसके पास भी सेम बेनिफिट है, सेम ग्रुप है, 10 लाख का लिमिट है, खाली क्रिटिकल इलनेस नहीं है। तो जो छोटे क्लाइंट होते हैं वो इतना सोचते भी नहीं है, मेडिक्लेम लेके काम चल जाता है, आप उनको पकड़ो, उनको सेम बेनिफिट सेम रिटर्न के हिसाब से आप उनको दे सकते हो। ये एक 10 लाख का समेश्योर है, 75,000 करीब प्रीमियम बैठता है, 2 पॉलिसी चाहिए एवरी वीक 2 पॉलिसी एंड योर 5 लाख कमीशन अचीव्ड। मैं एवरेज बता रहा हूँ, कितनी पॉलिसी बेचना है भैया इस कोटेशंस का? 10 लाख मतलब 75,000 प्रीमियम वाले आनंद में कस्टमर नहीं है, नदियाड में कस्टमर नहीं है, आप ढूंढो, आपको मिलेगा। आपको 1 लाख प्रीमियम का टारगेट करो, 75,000 में सेट होगा। ऐसे कस्टमर 20-25 कस्टमर्स हो गए, आपके 10 पॉलिसी होंगे, उसी में आपका निकल गया। आप टारगेट तो करो, आप अंधेरे में टारगेट मत करो। परसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड, प्रिपेयर द लिस्ट एंड मूव अहेड। 8% के आसपास का इसमें रिटर्न है, इसमें सिर्फ इतना ही किया है मैंने, बाकी कुछ भी नहीं निकाला है, पोस्ट टैक्स फ्री रिटर्न भी ऐड नहीं किया है। ये रिटर्न निकाला है लॉयल्टी एडिशन के साथ, टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम माइनस किया है और 8% का रिटर्न। सिर्फ इतना दिखाओ, कौन सा बैंक, कौन सा पोस्ट ऑफिस, कौन सा म्यूचुअल फंड दे रही है, लिख के। शॉर्ट टर्म में देख लीजिए आप, 6% 7% का रिटर्न अगर गारंटेड हाथ में मिल रहा हो तो कौन छोड़ के जाएगा? सेम 10 लाख में 1,12,000 का प्रीमियम है, ऑल रिटर्न इज टैक्स फ्री, इंश्योरेंस भी अलग से मिल रहा है इनको। आप पोजीशन कैसे कर रहे हो, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बिक रहा। All customers who is looking for guaranteed bonus return plan for creating capital, Bima Shri can also be positioned with the same like Jeevan Shiromani. Now what is next? Next is your favorite, जिसको हमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा आज। सब लोग इसको काम करते हैं, लेकिन मैं कुछ इंसाइटफुल आपको तरीके देता हूं। मैंने आपको बोला था कि जब भी उमंग की बात करते हो, चाहे बड़ा समेश्वर हो छोटा हो, छोटे के लिए इमोशंस भी काम होता है, बड़े समेश्वर में बात करते हो तो 4 रीजन इंपॉर्टेंट है उमंग के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, जो आप दे सकते हो किसी को। 4 रीजन। पहला, गारंटेड फिक्स्ड इनकम एट द रेट ऑफ 8% ऑफ समेश्योर अप टू एज 100। 8% समेश्योर का, यानी टोटल प्रीमियम जितना भरता है ना आदमी, उतना ही समेश्योर होता है, यानी आपके टोटल प्रीमियम का 8% एवरी ईयर आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा, अलग बोनस अलग से। दिस इज नंबर 1। टोटल जो इनकम मिलने वाला है वो टैक्स फ्री मिलने वाला है। एक ही स्कीम है पूरी दुनिया में जो लाइफ लॉन्ग आपको टैक्स फ्री रिटर्न दे रही है आज के देश में, इस मार्केट में। साथ में आपके 100% कैपिटल प्रोटेक्शन भी दे रहा है और आपका प्रॉपर ग्रोथ भी दे रहा है। यही तो चाहिए कस्टमर्स को। कस्टमर को और क्या चाहिए बताइए? हम कहीं SIPs कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मुझे रिटायर करना है, SWP करना है, विड्रॉ करना है, तो मेरा कैपिटल भी बढ़ते रहना चाहिए और पैसा भी निकलते रहना चाहिए, मेरा लाइफ कवर भी बढ़ते रहना चाहिए, और वो भी गारंटेड। म्यूचुअल फंड में ऐसा है, स्कीम है, लेकिन गारंटी नहीं है।
एंड ऑल्सो आपका लाइफ कवर एवरी ईयर इंक्रीज होता रहता है। किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए भी, यानी फैमिली का सुरक्षा कवच, आपका लाइफ लॉन्ग इनकम, आपका प्रोटेक्शन, इमरजेंसी फंड, और क्या चाहिए आपको रिटायरमेंट के लिए? ये 4 चीज आपको किसी भी लोगों से बात करोगे, वो कोई ना तो उसको रिटर्न चाहिए लाखों, लेकिन फिर उमंग 10 लाख का नहीं बिकना चाहिए ना। आदमी को उसके पेंशन की प्लानिंग, इसलिए मैं बोलता था आपको 1.5 करोड़ यानी महीने का 1 लाख तो चाहिए। आज के समय में आप जरा सोचो, 1 लाख रुपया महीने से कम का क्या प्लानिंग हो सकता है आप? और 1 लाख रुपया महीने का चाहिए तो 1.5 करोड़ का सम इंश्योर बेचना पड़ेगा। और नहीं तो कस्टमर को समझाइए कि आपको 1.5 करोड़ का सम इंश्योर पे पहुंचना है तो इस साल 50 लाख कर लो, अगले साल 50 लाख, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा फिर बढ़ाना सर आप। तो 2-3 साल में रिटायरमेंट में 1.5 करोड़ का सम इंश्योर पूरा हो गया, 3-4 करोड़ का कैपिटल हो जाएगा जब वो रिटायर होगा, 1-1 लाख महीने का टैक्स फ्री रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ प्लानिंग। अब ये तो हो गया प्लान के बारे में, है ना। आप बेचते कैसे हो वो आप पे डिपेंड करता है। स्मॉल स्क्रिप्ट यानी 15 साल का अभी टर्म चूज करना है तो 15 साल जितना प्रीमियम, जितना रिटर्न चाहिए, जितना उसको मंथली इनकम चाहिए उतना मंथली भरना पड़ेगा 15 साल के लिए। अगर 20 साल के लिए है तो जितना वो भरेगा उसका 1.5 गुना मिलेगा। 25 साल का टर्म लेता है तो 2 गुना मिलेगा, 30 साल का लेता है तो 2.5 गुना लेता है। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि उसको कितना महीने का चाहिए। 24,000 यानी महीने का 2,000 इनकम, 26,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख यानी 50,000 महीने का चाहिए। तो उसको डिफरेंट एज ग्रुप में कितना भरना पड़ेगा? 15 साल का टर्म लेगा तो 20 साल का टर्म लेगा तो 25 साल का टर्म लेगा तो 30 साल का टर्म लेगा तो अगर महीने का 50,000 चाहिए तो 2 लाख रुपया 20 साल का भरता है 30 साल के लिए। तो यंग लोगों के लिए जरा सोचो, इतना बड़ा कैपिटल क्रिएट हो सकता है। ये एक तरीका है पेंशन से आपको प्रीमियम निकालने, है ना। ठीक उसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। 15 साल भरता है यानी 65 लाख उसको मिलता है। अगर 1.5 लाख यानी 50,000 का प्रीमियम भी अगर वो 20 साल भरता है तो 1 करोड़ का असेट क्रिएट होता है। अगर वो 50,000 25 साल भरता है तो 1.25 करोड़ होता है, ये 1.5 करोड़ का होता है। यानी बहुत सारा का सारा टैक्स फ्री कैपिटल क्रिएट होता है। कभी इसको रिटर्न में निकालोगे तो आपकी आंखें चौधिया जाएगी। सबके लिए अच्छा है, लेकिन मैं कुछ आपको तरीके बताता हूं कि 9 मास्टर टेक्निक्स ऑफ सेल्फ जीवन उमंग में। टेक्निक्स नहीं बता रहा हूं, पॉइंट्स याद दिला रहा हूं क्योंकि इस पे बहुत लंबा लेक्चर ले चुका हूं। आपको हर एक टेक्निक से प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। आज पूरा दिन आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओगे, देखता हूं कैसे 70 दिन में 7 लाख कमीशन नहीं आते। अब बनाओ तो ईमानदारी से कोशिश तो करो। 9 टेक्निक्स। पहला टेक्निक बताता हूं। एक ही ऐसा प्लान है जो गारंटेड टैक्स फ्री इनकम देता है एवरी ईयर। जिस आदमी को हाई टैक्स ब्रैकेट में है और पेंशन प्लानिंग करना है, टैक्स फ्री रिटर्न चाहिए, तो उसके नाम होने चाहिए इसमें। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 है कि लिगेसी। अमीश के पापा, पापा से अमीश, अमीश से बेटा खुश, खुश के मतलब एक लंबे जनरेशन तक अगर आप उस उमंग को लिगेसी बिल्डअप करना चाहते हो तो 3G कंसेप्ट दो। आप अपने नाम पे लो, कंडीशनल असाइन कर दो पापा को, उनको जिंदगी भर मिलता रहेगा, उनकी डेथ होने के बाद आपको मिलेगा, आपके बाद आपके बच्चों को सारा पैसा वापस जाएगा। तो 3G कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा होगा, लेकिन कितने लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया? रेडीमेड कोट बनाओ इनका, कस्टमर के पास भेजो इस कस्टमर्स को। ऐसे लिस्ट बनाओ जिसके साथ आप ये काम कर सकते हो 3 जनरेशन वाले के साथ। बहुत ही इमोशनल कैटेगरी नंबर 3, पेरेंट्स गिफ्ट टू डॉटर, यानी बच्चियों को गिफ्ट देना है, पेरेंटल गिफ्ट देना है, लाइफ टाइम इमोशंस है। चौथा, एनिवर्सरी गिफ्ट टू स्पाउस। आप बोलो भैया हमारा सब चीज तो फिट है, आप 15 साल तक ऐसा इन्वेस्ट करो कि जब आप रिटायर हो गए 50 के बाद एवरी ईयर इतना पैसा आएगा कि एवरी ईयर वर्ल्ड टूर, कैपिटल सारा सुरक्षित रहेगा। लेकिन एवरी ईयर अगर आपको 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख आता है उमंग से, तो 5 लाख रुपया में वर्ल्ड टूर करना है। एनिवर्सरी, सेलिब्रेट इट, फिक्स इट, इमोशनली इसको कैप्शंस करो, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। 5वां, ए गिफ्ट टू योर पेरेंट्स, ग्रेटिट्यूड टू देयर सैक्रिफाइस। आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया, अभी आप कमा रहे हो,
इमीडिएटली एक पॉलिसी ले लो, आप अपने नाम पे असाइन कर दो पेरेंट्स को, जैसे उनका 15 साल होगा उनको मिलना शुरू हो जाएगा। इफ ही इज इन 50s ही विल रीच 60 61 से उनको जब तक वो रहेंगे ये उनका पैसा है, उनको ग्रेटिट्यूड के रूप में आप देते रहो। कनेक्ट करो एज के ग्रुप में, बहुत बड़ा कस्टमर बेस नहीं लेकिन 5 होंगे, 10 कस्टमर होगा, आज के आज लिस्ट में रेडी होनी चाहिए। इस टॉपिक्स पे आप उनको जाके बात करो। छठा, मिलेनियल्स फर्स्ट चॉइस, जितने यंग लोग आजकल ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे रुपेन का एज कम है, उसके नीचे के जितने एज ग्रुप है, नेयल है, अक्षित है, ये सब जितने लोग हैं, these people should take their first plan as a जीवन उमंग for 20 years term, 25 years term, एक बड़ा अमाउंट के साथ 25 लाख 50 लाख का सम एश्योर। वो कंफर्ट जोन में मत लो, मंथली प्रीमियम भरो, जितना आप कमाते हो उसको एक फिक्स करो। That will take to a longer term, क्योंकि मिलेनियल्स को लॉन्ग टर्म में बहुत इंटरेस्ट रेट्स कम मिलने वाले हैं, तो इंटरेस्ट कम मिलेगा तो ये 8% वो भी टैक्स फ्री, तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ना असेट क्रिएट हो जाएगा उनके लिए। 6 नंबर, बनाइए लिस्ट, आपके बहुत कस्टमर होंगे जिनके बच्चे यंग होंगे, उनको आप दे सकते हो। 7वां, हाई वैल्यू एंड लिमिटेड पेमेंट, पेड अप कंडीशंस, यानी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैं भर नहीं पाऊंगा तो क्या, इसके सारे बेनिफिट्स 2 साल के प्रीमियम भरने के बाद प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। तो ये चीजें कस्टमर्स को आप समझा सकते हो अच्छे तरीके से कि इसमें पैसा आपका ब्लॉक नहीं होगा, लाइक 914 में भरना है तो पूरा भरो, नहीं तो समय से रिड्यूस करो, इसमें ऐसा नहीं है। यू कैन प्रोपोर्शनेटली जितना भर सकते हो भरो, फिर छोड़ दो। इसके कस्टमर्स जितने बड़े बड़े टिकट साइज कोई भर सकता है उनके लिए आप ये प्लान कर सकते हो। एक ही साल तो याद रखना है कि अगले साल भर पाऊंगा कि नहीं, अगले साल भर दिया मतलब प्रोपोर्शनेट वैल्यू अप्लाई हो गया। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम, उमंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में फिट बैठता है, इसके कुछ लिस्ट बना सकते हो। फ्रेंड्स, 9th बहुत शानदार मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, यानी उमंग को बहुत सारे लोग रियल एस्टेट इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं और उसका ईएमआई भर रहे हैं और घर खरीद रहे हैं। काहे का बाबा, आप 15 साल के लिए ईएमआई यहाँ ले लो, उतने ईएमआई का यहाँ इन्वेस्ट करो और 15 साल के बाद देखो आपको जो भी घर खरीदते हो उससे कहीं ज्यादा रिटर्न देगी ये, उससे कहीं ज्यादा। आजकल घर खरीदोगे आप तो आपको 2 से 2.5% से ज्यादा रेंटल इनकम नहीं होता, वो भी टैक्सेबल। आज यहाँ पे वर्चुअल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करो, 15 साल में लोन खत्म, आपका खुद का एम्पायर एंड खुद की इनकम 8% और लाइफ लॉन्ग वो इनकम बढ़ता रहेगा। इतना वैल्यू रियल एस्टेट का कभी बढ़ता नहीं है, मैंने कैलकुलेशन के साथ आपको सिखाया है। आप कभी वीडियो देखना चाहोगे 9 के 9 स्ट्रेटजी को, एक आपको YouTube पे मिल जाएगा, तो यू जस्ट गो एंड हैव इट 45 मिनट्स, यू कैन जस्ट हैव एवरी पॉइंट्स आर कवर्ड इन डिटेल। ये स्क्रीनशॉट लो, इसकी फोटो लो, इसके हर एक पॉइंट पे लिस्ट बनना चाहिए। 8 कस्टमर 10 कस्टमर, उसका कल से काम शुरू करो, कल से उनसे बात करना शुरू करो। कंफ्यूज मत करना, एक बार स्टिक करो कि मैं मुझे 3G कंसेप्ट समझाना है तो 3G ही समझाना है, एनिवर्सरी गिफ्ट समझाना है एनिवर्सरी गिफ्ट ही समझाना है, बेटी के लिए इमोशंस कंसेप्ट तो वही ही समझाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस रीजन से ये प्रोडक्ट को बेचते हैं। ये हो गया आपके गारंटेड प्लान्स। नाउ कैपिटल प्रोटेक्शन प्लान्स में क्या क्या आते हैं, लो रिस्क हाई रिटर्न्स, जीवन लाभ, इसके भी 9 कंसेप्ट बता देता हूं आपको जो आप बेच सकते हो। 9 रीजंस टू बाय जीवन लाभ। पहला रीजन है कैपिटल क्रिएशन विद स्मॉल सेविंग्स, यानी एक ऐसा प्लान है जिसका सम एश्योर, छोटे लोग है ना, अगर पहली पॉलिसी कोई शुरू करे तो लाभ दे दो, 25-16 का टर्म, 21-15 का टर्म, 16-10 का टर्म, छोटा दे दो लेकिन लाभ दे सकते हो। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये लिमिटेड पेमेंट प्रोवाइड्स लिवरेज ऑफ शॉर्ट टर्म। बहुत सारे लोग आजकल फेवरेट हो गया, अरे यार इतना दिन कौन प्रीमियम भरेगा, भले मैच्योरिटी बाद में है लेकिन प्रीमियम जल्दी फिनिश करना चाहता हूं, उसके लिए लाभ से बेहतर अच्छा रिटर्न देने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं है ना। आई नो मेनी ऑफ यू आर सक्सेसफुल ऑन दैट। पीपीएफ कंसेप्ट जो मेरा था 4 साल 5 साल पहले का, आज बाजार में देखो कितना बड़ा कंसेप्ट वो हो गया। हर एक इंडस्ट्री में किसी न किसी को वो ब्रेक करना होता है, तो वो डिसरप्शंस जो हम उस टाइम किए थे, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन इट हैज बीन वेरी पॉपुलर। आज पीपीएफ देखो बाजार में, हर एक एजेंट हर एक डीओ बात करता है पीपीएफ ले लो, पीपीएफ ले लो, एलआईसी का पीपीएफ। रिमेंबर करो 2014 में हमने पीपीएफ बनाए थे, अक्टूबर महीने में नदियाड में। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था। आज आनंद में भी मैं जब आया था तो आनंद में ही हमको क्रिटिसाइज होता है, इतना रिटर्न कैसे दे सकता है। आज देखिए आपको समझ में आ रहा है कितना रिटर्न मिल रहा है। इजी वे टू प्लान फॉर चाइल्ड एजुकेशन मैरिज,
बच्चे को जब ग्रोन अप एज है, जिन बच्चा पैदा हुआ उस टाइम ही अगर आप लाभ लेते हो तो 10 साल 12 साल में बच्चे जब बड़े होते हैं ना उतना खर्चा नहीं होता है, हायर एजुकेशन में ज्यादा होता है, तब तक इसके प्रीमियम फिनिश हो जाए, फिर हॉलीडे पीरियड में आप उसको गैदर करो एंड जब पैसे को जरूरत होता है तो आपको एक अच्छा खासा प्लान दे सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यही चाइल्ड एजुकेशन प्लान है, लक्ष्य भी इससे बहुत बेहतर है, लेकिन ये भी एक तरीके के रूप में यूज किया जा सकता है। चौथा, गारंटेड वे टू क्रिएट रिटायरमेंट कॉर्पस। देखिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कोई आदमी म्यूचुअल फंड में क्यों जाएगा, यहाँ पे गारंटेड श्योर शॉट 10-12% का IRR के साथ आपको फंड क्रिएट हो रहा है, तो क्यों उधर जाएगा, विद इंश्योरेंस टैक्स फ्री के साथ। पांचवा, 100% कैपिटल प्रोटेक्शन, यानी आप देखोगे इसका सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है, यानी सम एश्योर्ड जो भी प्रीमियम 10 साल में भरोगे ना, डे 1 से उससे करीब 140% सम एश्योर्ड ज्यादा होता है, यानी 25-16 लोगे 10 लाख का लोगे तो 6-7 लाख प्रीमियम होता है, यानी 150% ऑफ योर सम एश्योर्ड इज गारंटेड फ्रॉम डे 1 प्लस bonus is getting added on a due on a maturity term. So this is capital protection from day 1. Sixth is long term risk cover with limited liability, यानी 25 साल की पॉलिसी 16 साल ही प्रीमियम भरना है, 16 साल का लाइफ टाइम कवर 10 साल ही प्रीमियम भरना है, ये भी एक इसकी खासियत है। सेवंथ, गारंटेड कैपिटल एप्रिसिएशन विद बोनस, यानी 10 लाख का सम एश्योर्ड है लेकिन एवरी ईयर बोनस ऐड होता रहता है, यानी कैपिटल बढ़ रहा होता है। देखिए आपको कौन से कंसेप्ट कस्टमर्स के दिमाग में फिट बैठता है ये आप पे डिपेंड करता है, बट ये मेरे 9 रीजंस हैं जो बाय जीवन लाभ। आप इसको फोटो खींच के कस्टमर को भेज सकते हो, समझा सकते हो कि दिस इज द 9 रीजन। नो मार्केट रिस्क, better than any debt mutual funds, and finally last but not the least friends, 100% tax free and a very high return in hand। जहां तक रिटर्न की बात आती है, कितना रिटर्न मिल सकता है, देखो हाई यील्ड 16 टाइम में, राइट टाइम टू शो IRR, ये अभी समय है आपको दिखाने का। देखो 16-10 6.61, 21-15 7%, 25-16 7.66%, इसका हमने IRR निकाला 1 करोड़ सम एश्योर्ड का, तो ये आता है, यानी यहाँ पे कोई टैक्स ऐड नहीं किया, कोई टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम माइनस नहीं किया, तो इतना मैच्योरिटी आती है। अगर हम सिर्फ फ्री इंश्योरेंस प्लस 1010D अगर ऐड कर दें, खाली फ्री इंश्योरेंस की वैल्यू है अगर माइनस कर दें प्लस टैक्स सेव, तो इनका रिटर्न देखिए कितना हो जाता है, 6.95, 7.37, 8%। ATC and 1010D benefits are another points which is enhancing their returns। जब हम वो ऐड करेंगे तो ये चार्ट बनता है सामने, यानी 35 साल का एज है, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है, आप देखो 9.61, 10%, 11% जो आपको पोस्ट टैक्स फ्री रिटर्न आता है, और टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम माइनस करते हैं तो सारे 11-12% का रिटर्न आता है। मुझे बताओ 11% इक्वल्स टू म्यूचुअल फंड ऑफ 11%, जो कि उसका रिटर्न टैक्सेबल है, इसका रिटर्न टैक्सेबल नहीं है। इसका इंश्योरेंस एक्स्ट्रा मिल रहा है, वहां पे कोई इंश्योरेंस नहीं है। यहाँ पे ये बंदा ये 8 लाख रुपया भरता है, अगले दिन डेथ हो गया उसको तो 1 करोड़ के ऊपर उसको पैसा मिलेगा, म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा। आप 8 लाख इन्वेस्ट करो SIP, अगले साल 8 लाख से 8.5 हो गया, 9 हो गया, वही मिलता है। ये कंसेप्ट को समझाने के लिए हमने टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम माइनस किया, फिर देखो रिटर्न आज 10% 12% कोई लिख के देगा, भैया 3 साल में म्यूचुअल फंड जो है ना अभी 22% रिटर्न दे रही, 15 साल में रिटर्न जो है 12% से 15% दे रहा, वो भी टैक्सेबल। ये मार्केट को अंडरस्टैंड कीजिए, 1 साल का रिटर्न मत समझिए 100%, 50%, 60%, ये 25 साल का प्लान है। 25 साल का रिटर्न आज भी 10-12% है, जबकि पीक पे है, तो पैसा निकालने वाले हो, अभी धीरे धीरे ये रिटर्न कम होगा, आप समझो। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन लाभ। इफ यू आर, आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर तो अच्छी बात है, आप नहीं तो प्रोस्पेक्ट्स तो कितना भी मैं आपके सामने आंखों के सामने दिखने चाहिए। गिव वन इंस्ट्रूमेंट इन एंटायर इंडियन मार्केट व्हिच गिव 9.5 से 11% का रिटर्न टैक्स फ्री मिलता है, एक रिटर्न बता दो। आस्क योर क्लाइंट, चैलेंज करो उसको, 25 साल का प्रोडक्ट। फ्रेंड्स इसके साथ कुछ और बेनिफिट में 10 से 14% का रिटर्न हो गया। लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स इफ अवेल्ड, शुरू में तो रिटर्न तो 2500-2000% भी मिल सकता है। सेल फॉर 8 years and above child for capital creation along with PWB, एक नया चीज ऐड हुआ है अभी जीवन लाभ उमंग में कि PWB बेनिफिट्स भी आप दे सकते हो जो अर्लियर नहीं था। Time has come for aggressive comparison of instrument friends and this is what is required. Goal based, event based planning. Event based planning करोगे तो ये प्रोडक्ट काफी अच्छी बिकेगा। All sure fixed guaranteed event must be planned by LIC. Do it. तो क्या करना है आपको,
Where your client invest their fund for capital guaranteed of low risk of investments. Friends, ये नहीं मल्टी कैप फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड ऑफ SIPs कर रहे हैं. स्टॉप करो उसको, समझाओ कि वहां पे 8% का रिटर्न वो रिस्क हाई रिस्क में डालते हो, यहाँ श्योर शॉर्ट इवेंट हम 10% रिटर्न दे रहे हैं. PPF, रेगुलर FDs, पोस्ट ऑफिस, RDs, कहीं कहीं जाना, पैसा जाना नहीं चाहिए. इट हैज टू कम हियर और कहीं. व्हाई इज इट सो? देखो ये डेट फंड का ये तो लास्ट ईयर का रिटर्न है, आज का रिटर्न तो 4% भी नहीं मिल रहा है. 4 से 5%. अगर कभी कोई म्यूचुअल फंड में है, मनी मार्केट में जाते हो आप, जाके देखो कितने भी डेट फंड जितने भी हैं उसका लास्ट 1 साल का रिटर्न देखो, 4.5, 5 ऐसे ही रिटर्न है. हाउ कैन वी स्विच? SIPs फॉर लो रिस्क एपिटाइट फॉर लेस रिटर्न, सेफ्टी फॉर कैपिटल, 5 से 6% का प्री टैक्स रिटर्न डेट फंड में मिलता है. कस्टमर लुकिंग फॉर 5 से 7% लो रिस्क, वो म्यूचुअल फंड में डालते हैं, उनको आप ये रिटर्न दिखाइए 8%, 10% का. LIC's any plan of regular premium with pre-tax return has more yield than debt fund of the market plus sovereign guarantee. Therefore, आपको सच बोलना पड़ेगा, सच बताओ, आपको रिजल्ट मिलेगा. बेस्ट टाइम टू पुश जीवन लाभ, बीमा श्री, जीवन शिरोमणि एंड बचत प्लस. नो, बात बचत प्लस की आती है. पता नहीं कितने लोगों ने इस पे काम किया कि नहीं किया. ये एक ऐसा प्लान है जो 3 चीज एक जगह देती है और लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन में ये आज भी बेहतरीन है. 5 साल का PPT, 1 साल और 5 साल, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड टैक्स सेविंग्स. ये मैंने आपको एक चार्ट शेयर किया था कि आपको अगर कोई शॉर्ट टर्म लेता है तो भी और लॉन्ग टर्म लेता है तो भी 6% का इसको कंपाउंडिंग IRR आ रहा है. अगर टैक्स फ्री का नीचे वाला अगर सिस्टम याद रखिए, देखिए जो मैं नीचे दिया हूँ, 1 लाख का प्रीमियम का सेट करो आप, इसके भले 14% कमीशन हो, लेकिन इसको टारगेट करो. इजिली आदमी 1 लाख रुपया 5 साल देने को तैयार हो जाएगा. 10-20 पॉलिसी बेचोगे, MDRT हो जाएगा आपको कोई. लेकिन इसके ऊपर टारगेट आपको किस तरह से करनी है वो आपको सोचना पड़ेगा. कि आदमी को 6% गारंटेड रिटर्न दे रहे हैं और आपको 50 लाख में है तो 9-10% का रिटर्न मिल रहा है. 5 साल ही PPT भरना है. 5 साल एक बहुत बड़ा ट्रेडमार्क है इस मार्केट को चेंज करने के लिए. मुझे लगता है कि आज मैं शायद मैं इंडिया आऊं तो मैं एक प्रोडक्ट अगर मैं अपने लिए चूज करूं जहां पे मैं 1 लाख 2 लाख रुपया साल का भर सकूं, तो यही प्रोडक्ट मेरे को दिखता है, बाकी कोई दिखता नहीं है करेंटली माय स्टेटस. ठीक है. 10 टाइम्स ऑफ लाइफ कवर, ATC बेनिफिट एक्स्ट्रा है. जिसको लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं दिखता है, 5 साल में भर सकता है, उनको आप ये स्कीम जरूर समझाओ. सारे बेनिफिट्स हैं, 10 रीजन हैं इसको बेचने के लिए. ये 10 रीजन आपके सामने रखा हुआ है. आई हैव टोल्ड दिस प्लान इन अ वेरी लाइटनिंग सेशन ऑन अगस्त. आई थिंक यू शुड टेक अ बेनिफिट ऑफ दिस. इसके भी 7 प्रोस्पेक्ट्स तरीके बताए थे. वेल्थ क्रिएशन के रूप में बिक सकता है, कैपिटल गारंटेड सेविंग्स के रूप में इसको बेच सकते हो, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट फंड एंड रेगुलर इनकम बना के भी बेच सकते हैं इसको. एंड शॉर्ट टर्म प्लान, रेगुलर इनकम मतलब ठीक HDFC की तरह इसको आप 15 साल 16 साल का रेगुलर इनकम बना के बेच सकते हो. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सेप्टेड प्लान इन द मार्केट. आपका नसीब अच्छा है कि इसको मार्च तक, फरवरी तक बढ़ाया गया. इसको बेचो. दिस विल हेल्प यू टू क्रिएट अ बिग मार्केट जो बढ़ रहा है. इसके साथ आपको एक ही प्लान है जो शॉर्ट टर्म लिविंग सेविंग 5 साल में है. स्टेट प्लानिंग विद लिमिटेड लायबिलिटी कर सकते हो, एम्प्लॉयर स्कीम में भी बेच सकते हो, MWP टैक्स प्लानिंग में भी इसको बेच सकते हो. किस प्लान को कौन से सेगमेंट में बेचना है, ये HNI सेगमेंट्स को टारगेट करो. ऑप्शन B करो जो नॉन टैक्सेबल है क्लाइंट है, लेकिन जो टैक्सेबल क्लाइंट है उसको A में ही रखो ताकि उसका रिटर्न टैक्स फ्री मिले. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्शन हैविंग हाई पे आउट्स फॉर शॉर्ट टाइम, उनको डालो. बहुत सारे लोग अभी मार्केट में बहुत पैसा कमाए हैं तो उनके 5-5 लाख 5 साल के लिए इन्वेस्ट करा दो इधर, एक गारंटेड रिटर्न उसका क्रिएट हो जाएगा. फिर भी आपको लगता है कि रिटर्न कम है. सो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव रिटर्न मीन्स ये होता है एनुअल रिटर्न, CAGR, प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स. इतने तरह के रिटर्न्स की बात होती है जो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था. बट मार्केट में अभी क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर कोई आदमी 5% से कम का रिटर्न है ना तो बैंक में डालता है पैसा. LIC 5 से 6% अगर टैक्स फ्री रिटर्न दे रही है तो वो आदमी को LIC से बेहतर इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए. लोग म्यूचुअल फंड में कौन डालता है? 8 से 10% है. इक्विटी मार्केट में 10% से ज्यादा टैक्सेबल. तो ये टैक्स फ्री जो है ना, ये इसके बराबर हो जाता है. ये आपको समझना है और समझाना है. अगर आप समझा दिए तो आपका रिजल्ट पक्का मिलने वाला है कस्टमर के पास. कुछ देखिए मार्केट में और क्या है. रेपो रेट कितना कम हो गया है.
4% मैनेज रखा है और आगे भी इसको मैनेज ही रखने की तैयारी किया जा रहा है। जब भी रेपो रेट कम होता है, एफडी रेट्स कम होता है, और एफडी रेट्स जो है रेपो से 1 से 1.5% प्लस माइनस में होता है, और लोन रेट भी 2 से 3% रेपो रेट से कम हो जाता है। लेटेस्ट कल का देखिए जीसेक रेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 6% का है, 6.2 का। आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे ना तो 6% मिलता है। तो हमारा 5.5-6% का गारंटी रिटर्न विद इंश्योरेंस अगर हम देते हैं और टैक्स फ्री रिटर्न दे रहे हैं, तो मुझे लगता है एलआईसी का रिटर्न बहुत ही सस्टेनेबल है। यू मस्ट इन्वेस्ट इन दैट। Low GSEC return led to LIC's lower investment yield, and that is one of the reason। अभी भी मैं मानता हूँ बहुत सारे बजाज अगर जो गारंटी रिटर्न वाले प्रोडक्ट ला रहे हैं, इधर उधर इफ एंड बट करके पैसे कहाँ कमा रहे हैं वो लोग, मोर्टलिटी को समय श्योर कम कर दे रहे हैं, टर्म कम कर दे रहे हैं, गारंटी रिटर्न वो 4 से 5% के बीच में बिठा रहे हैं। कहाँ पे कॉस्ट मैनेज कर रहे हैं? इंश्योरेंस को कम करके। So because 84% of total LIC's investment is in government securities, वेरियस रेंजिंग, सो इसीलिए सारा का सारा पैसा एलआईसी का टैक्स फ्री है, वो आपको रिस्क फ्री होता है। इसीलिए सोवरेन गारंटी को आपको एक राइट टाइम पे आप इसको पुश करो। सो फ्रेंड्स अंडरस्टैंड करो रियलिटी को। सो आई विल फिनिश इन 5 मिनट्स। जब बैंक एफडीज आर लेस देन 5%, 5 to 3% ऑफ टैक्सेबल रिटर्न, बॉन्ड फंड म्यूचुअल फंड इज लेस देन 5% ऑफ टैक्सेबल रिटर्न, ह्यूज अनसर्टेनिटी है फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स का, तो मेरे हिसाब से ब्लूमबर्ग सेज कि आरबीआई का फ्यूचर वॉलेटाइल रेट्स होने वाला है कितना, 4% तक 2030 तक रहेगा। तो दिस इज अ राइट टाइम फ्रेंड्स। ट्रुथ क्या है, एलआईसी का कोई भी स्कीम हो, चाहे बचत प्लस हो या कोई भी स्कीम हो, स्टिल ऑफर्स अ कॉम्पिटिटिव बेस्ट रिटर्न इन गारंटेड एंड एश्योर्ड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इन होल मार्केट। तो ये चीजें आपको क्या हो गया, स्क्रीन स्टॉप हो गई, जस्ट अ मिनट। तो ये चीजें हैं जो आपको आज के समय में प्रमोट करनी है। तो फ्रेंड्स मेरा आपसे यही आग्रह है कि 1 मिनट, कि मेरा आपसे आग्रह यही था कि जब आप फाइनल टेक ऑन द चार्ट, जो भी अभी तक मैंने आपको सिखाया है, कि इफ वी कैन प्रोवाइड मोर देन 8% प्री टैक्स IRR in almost all schemes for term plan more than 15 years, then why any customer invest in mutual fund for higher return by risking? Because ये हमारा अपना है कि हम अपने इस मोमेंट ऑफ ट्रुथ को, ट्रस्ट को डेमोस्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए आपको नॉलेज, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस इसकी जरूरत पड़ती है। जो लोग कर रहे हैं दे आर वेरी सक्सेसफुल, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन आई सी good people in my group who is like booming in their career in last 4-5 years. क्योंकि financial planning has become more and more innovative, my dear friends. Use of art and science for making marketing will attract your customer at the top of funnel. आप इसको यूज करो। आप कौन सी दुनिया में हो, चकाचौंध आपको MDRT बन के सॉल पहना दिया, माला पहना दिया, तो आप तारे जमीन देखने लग गए। ऐसे मत करो, ग्राउंड पे रह के इसको प्रैक्टिस करो। किसको? आर्ट एंड साइंस को। कुछ भी पॉसिबल है। जब भी आपके पास समय बचता है, कस्टमर से मीटिंग नहीं है, तो थोड़ा सा इस मेथड्स के ऊपर प्रैक्टिस करो। देखो कौन सिखा सकता है, कहाँ से सीख सकते हो। ये प्रोसेस के ऊपर काम करोगे ना तो कुछ भी पॉसिबल है। आराम से आपका प्रोडक्ट पे सक्सेस होगा। प्रोसेस के ऊपर काम करो। और बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपको भी पता है। बेस्ट इन्वेस्ट स्ट्रेटजी इज मिक्स असेट क्लास। सो कस्टमर्स को खाली यूलिप, खाली ये पसंद, खाली जीवन लाभ, जीवन उमंग से सब चीज नहीं हो सकता। आप थोड़ा सा उसके रिस्क रिटर्न गोल को आइडेंटिफाई करके दूसरे प्रोडक्ट को भी पोजीशन करो। कभी कभी एक कस्टमर आपको उमंग बोल के ना नहीं बोलता है, इसका मतलब वो डिले कर रहा है, तो कुछ दूसरा उसको दिखाओ, शायद उसके काम आ जाए। ये आपके सामने टारगेट है फ्रेंड्स। मेरी इच्छा है 70 दिन का आपका, ये ध्यान से 2 मिनट आप देख लो ये स्लाइड। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि ये 70 दिन में है? मेरे याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, एक गुरु मंत्र आपको देता हूं आज। अगर आपकी खुद की स्ट्रेंथ, इफ यू पुश योर स्मार्ट स्ट्रेटजी जो डिस्कस किया अभी, with these popular plans for next 70 days by working at least 5 to 6 hours average daily for new business, for new business, MDRT achievable। अगर आप जीरो से भी शुरू करते हैं तो, बट कुछ चीजें ना करना है, नहीं करना है, वो ध्यान रखना। पहले तो आप अपने स्ट्रेंथ पे बिलीव करो। दूसरा, किसी भी
एक्सपेरिमेंटेशन पार्टिसिपेट मत करो कि कुछ नहीं किए हो तो मत करो, जो स्ट्रेंथ नहीं है उसके ऊपर मत लग जाना आप कल से। और सर ने बोला है आज के बाद शिरोमणि शुरू कर देंगे। प्रोस्पेक्ट्स बनाओ, तैयार करो, समय निकाल के मिलो, लेकिन शिरोमणि करूंगा बाकी कुछ भी नहीं करूंगा। और सर आपने तो बोला था शिरोमणि बात करो, मैं कुछ किया हुआ नहीं, ऐसे नहीं करना है। कोशिश करो, एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन अपने स्ट्रेंथ के ऊपर 90% काम करो, 10% पे दूसरा फोकस करो, क्या पता उससे आपको रिजल्ट मिले जो नहीं मिल रहा था। फोकस ऑन एग्जिस्टिंग एंड लीड बेस्ड क्लाइंट्स। नए क्लाइंट्स के पीछे भागने की कोशिश ज्यादा मत करो, 10% एनर्जी लगाओ अगर मिलता है तो। प्लान को पुश करो, सेगमेंट्स व्हिच इज योर स्ट्रेंथ, जिसको स्ट्रेंथ है उसको ही पुश करना है। रिजल्ट के ऊपर आज से काउंट करना नहीं कि इस महीने इस क्वार्टर में 50,000, इस सप्ताह में 50,000 कमीशन नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ, होगा, एवरेज होता है, पहला सप्ताह नहीं होगा, दूसरा सप्ताह नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, कम होगा, यानी 50 बोला था तो 25 हुआ, फिर 35 हुआ। लास्ट के मंथ के 4 वीक में आप भले 50,000 का एवरेज पकड़ते हो, आपको 2-2 लाख होगा, ये भी याद रखना। ये चीजें लास्ट में कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, जैसे 1 + 2 + 3 लास्ट में ये कितना बड़ा हो जाता है वो आपको समझ में आएगा। तो अभी पहले के 70 दिन को भी आप जो है ना 3 भाग में बांट लो, पहले के 20 दिन, फिर 20 दिन और फिर 30 दिन। तो इस तरह का जो काम होगा वो आपको एक नया रास्ता देगा। इसलिए एक्टिविटीज पे फोकस करना, आउटकम पे नहीं। बाजार में फियरलेस होके बात करो, डरने की जरूरत नहीं है, जो भी मैंने आपको बताया वो करो, लेकिन हेल्थ सेफ्टी के साथ। क्योंकि फियर जो है ना माय डियर फ्रेंड, जैसे ही फियर का डेफिनेशन चेंज हो गया है, फेस एवरीथिंग एंड राइज, ये मैं चाहता हूं कि आप इसको फेस करो एंड उठो कि ये पॉसिबल है 70 दिन में। अगर आप इसका अपोजिट मीनिंग लगा लिए तो ऐसे हो जाओगे आप। दिस नेगेटिव फियर ऑलवेज पैरालाइज यू। अरे नहीं होगा, आज बात किया कोई जवाब नहीं दिया, 5 दिन नहीं देगा जवाब, आप कोशिश करो। मैंने कहा ना पहले 20 दिन, पहले 20 दिन बिना एक भी पॉलिसी नहीं आएगा, लेकिन 20 दिन 5 घंटे रोज नए लोगों की लिस्ट बनाओ, लोगों से बात करो, लोगों की कोटेशन भेजो, लोगों से मिलो, ये चीजें आपको बनाएगा। क्योंकि वन मोर रीजन टू गो फॉरवर्ड, ये मोटिवेट्स करेगा आपको। 3 चीज, कम्युनिकेशंस बहुत करना है, कोलैबोरेट करना है कस्टमर के साथ, और कॉन्फिडेंस रखना है कस्टमर के साथ। ये तीनों चीज रखोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। एक्शन प्लान्स में कुछ बता दूं आपको, पहले तो लिस्ट बनानी है जो मैंने आपको आज बताया है, रेडीमेड कोटेशन बनानी है बेस्ड ऑन द सेगमेंट्स विच, जो आज इतने तरीके बता रहा हूं, चाहे शिरोमणि हो, बीमाश्री हो, उमंग हो, लाभ हो, बचत प्लस हो, इसके ऊपर रेडीमेड कोट बनाओ, उसको भेजो, सेंड देम इन फेज वाइज, रोज 10-10, 20-20 भेजना है, फिर फोन करना है, फिर अपॉइंटमेंट लेना है, जाके समझाना है, फोन पे नहीं समझाना है। फोन बोला अरे उतना तो बढ़िया नहीं लगा, सर नहीं लगेगा ना, उसके लिए तो मिलना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा मुझे उस प्रोडक्ट में है क्या। रीच आउट टू देम आफ्टर 2 days ऑफ मीटिंग डिस्कशंस। आपकी मीटिंग्स रोज होनी चाहिए, 3-4 मीटिंग्स। एलिमिनेट नेम्स फ्रॉम द लिस्ट इफ से नहीं 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 अभी नहीं है, अभी भी बात नहीं करेंगे, रिमूव करो। उस पे एक्सपेक्टेशन लेके बार बार निगेटिव माइंडसेट क्रिएट नहीं करना है। ऐसा टारगेट करो कि सारे के सारे प्लान 31 को बंद हो रहे हैं, तभी ये 70 दिन आपके काम आने वाले हैं। आप याद रखना, अपने इफर्ट्स के प्रति अगर आप ईमानदार हो तो आपको किसी और की जरूरत नहीं है। रिजल्ट्स आर बाउंड टू कम। एक और चीज, अगले 70 दिन कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में मत बैठना, क्योंकि वो आपका दिमाग रोटेट कर सकता है। किसी कंपटीशन के पीछे मत भागो, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है शॉर्ट टर्म गोल के लिए। मैं आप सबसे, जो भी 5-7 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग जहां से जुड़े हैं, आप प्लीज 70 दिन सब चीज भूल के जितना बताया इसके पीछे लगो, अपने स्ट्रेंथ को पुश करो, अपने लोगों के पास बैठो। किसी भी फालतू ट्रेनिंग प्रोग्राम, MDRT, COT, TOT, कंपटीशन, प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि डिवीजन लोग सोए रहते हैं, सितंबर के बाद प्रोस्पेक्टिंग MDRT मीटिंग करने लग जाते हैं, जबकि ये पहले जनवरी के फर्स्ट वीक में होना चाहिए। तो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन आप, आपका समय है, आपका समय है, अननेसेसरी वेस्ट मत करो उन फालतू जगह जाके। तो मेरी तो उम्मीद है कि सब लोग क्वालिफाई करो। मैंने अपना काम किया है। आई विल स्टॉप इट हियर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। नाउ open the forums for Q&A and feedback if anything required. Thank you. Yes. Was it useful? Yeah, definitely, sir. It is very, very useful. Hello.
या बोलिए. Yeah, definitely it is very useful, sir. Only thing is that it's a matter of action. Means how we implement these ideas and knowledge and into practice. That is very important. And definitely, sir, जो भी अभी 2 लाख के ऊपर है टीम में, उनके साथ ये स्ट्रैटेजी आज ही शाम तक मैं फाइनलाइज करके आपसे वापस फीडबैक दे दूंगा. Very good. Yeah. Thank you. I'm on it, sir. Thank you. Yeah. या और कोई? मनीषा मैडम बोलो, क्या बोल रहे हो आप? बोलिए, म्यूट हो आप. मनीषा मैडम अनम्यूट करो. नमस्ते सर. नमस्ते सर, बहुत अच्छा रहा सेशन. टीओटी 100% हो जाएगा सर. और आज आपने जो बोला ना कि एचएनआई क्लाइंट से हम यहाँ से बिजनेस कर सकते हैं, उसका प्रोसेस कैसे करना पड़ेगा हमें? जैसे करते हो, प्रपोजल फॉर्म ईमेल पे भेज देना है, वो साइन करके आपको भेज देगा, कुरियर कर देगा. बाकी सारी फॉर्मेलिटीज तो मैंने आज समझा दी आपको. ओके सर. आप कस्टमर ढूंढो. आप कस्टमर ढूंढो, मैं बता दूंगा कैसे करना. यस सर, आज लिस्ट बनाती हूँ सर. बनाओ सारे, हर एक सेगमेंट पे. आज तो लिस्टिंग का ही डे होना चाहिए. आज पूरा दिन बैठ के 100-150 लोग बनाओ. देखता हूँ किसकी हिम्मत है आपको एमडीआरटी बनने से रोक सकते. यस सर, मेरा डबल एमडीआरटी हो जाएगा ये मंथ में सर. ठीक है, सीओटी भी होगा, मुझे पूरा भरोसा है. यू विल बी क्रैक सीओटी. यस सर, 100% सर. थैंक यू सर. या थैंक यू. सर बहुत बढ़िया रहा सर. हाँ बहुत बढ़िया सर ट्रेनिंग रहा. इन बिटवीन थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं था. आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 5-6 days बट नथिंग टू वरी. आई एम फाइन नाउ. क्या हो गया? कुछ सर पेट का वगैरह थोड़ा तकलीफ था, बाकी कुछ नहीं. बट बहुत तकलीफ हो गया था. पैसे के पीछे मत भागो, थोड़ा खाने पीने पे भी ध्यान दो. हाई पैसा करते रहते हो आप. नहीं सर. नहीं, आपको बोला 2 आदमी रखो, उसको 2 ये सब काम करेगा. अभी भी खुद ही भागते रहते हो. yes. I will take care. But everything is fine. जो आपके साथ मैंने काम किया था, you know that राकेश शिंदे and all this, उनके प्रीमियम अच्छा रहे. कल ही 25 लाख उनका क्लोज किया. बट अगर आप होते तो 1 करोड़ के आगे जाता. मैं वो क्लोज नहीं किया हूँ. फॉर्म पे साइन करके सब लेके आया हूँ, तो बढ़ेगा और प्रीमियम बढ़ेगा उसमें. तो जो हमने पहले वर्क किया था उसका हो रहा है. माय टारगेट इज आल्सो डबल एमडीआरटी चल रहा है सर. हो जाएगा. वेरी गुड. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. यस, नेक्स्ट. या एमके बोलो. नमस्ते. कहाँ हैं सर? है एमडीआरटी हो जाएगा सर. हाँ, आप एकदम काम धाम एलआईसी का लग रहा है छोड़ दिया. पिंटो सर का हाथ छोड़े कि आप काम छोड़ दिए, ऐसा दिखता है. नहीं सर, एमडीआरटी कंटिन्यू करता हूँ मैं, हर साल करता हूँ. बस सेम क्लास में रहना है. नहीं सर, ऐसा नहीं है. एमडीआरटी मेरा हो गया है कि दीपावली तक हो जाएगा मेरा. अभी जो कमीशन आएगा वो ऐसे जोड़ जाड़ के रखो आप, बस काम नहीं करो. नहीं, एमडीआरटी तो होता है सर. मैं आपने एक चीज सिखा दिया तब से एमडीआरटी में कभी छोड़ा नहीं. कंटिन्यू मेरा ये 6ठा एमडीआरटी है. एमडीआरटी से आगे भी होना है ना. तो उस चीज को पकड़ कर रखा हूँ सर, उसको छोड़ा नहीं है मैंने. करो, आगे आओ आगे. अभी पता नहीं, एक आपको यहाँ है नहीं. मेरा एक कहावत बहुत फेमस है, वो नदियाड़ में समीर भाई हैं, उनसे वो एमडीआरटी बोलते थे. मैं सर 20 साल का एमडीआरटी हूँ. मैं कहा 20 साल तो भाई खुशी हो रही है आपको. पहले दिन ही उनकी क्लास इतनी ले लिया था. देन ओनली बिकम टीओटी सीओटी एंड हर एक साल बेचारे बहुत बढ़िया कर रहे हैं. अरे इधर ही हूँ. अच्छा. हाँ देखो, गाड़ी में बैठे हो आप. ओके. नहीं, पिंटू सर गए तो तब भी सर काम कर रहा हूँ. और उनके नहीं रहने नहीं, मुझे मालूम है आप अच्छा कर रहे हो. उम्मीद उसके साथ ही होती है ना जो अच्छा करते हैं. आप एमडीआरटी कर रहे हो, तब भी करते थे जब बहुत कम लोग करते थे. आजकल तो ध्यान है बटेरो एमडीआरटी होने लग गए ब्रांच में. तो आपकी आइडेंटिटी सिर्फ एमडीआरटी से नहीं होनी चाहिए. वो कंटिन्यू रहा. बाकी जैसे आपने बताया जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस मेरा बढ़ गया. ओके. और काम तो हो रहा है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है. स्टाफ भी बढ़ाया हूँ और ऑफिस भी बढ़िया डेवलप किया. करो बढ़िया. ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपका ऑफिस देखते हैं. मस्ट सर
थैंक यू सर, थैंक यू. Yeah, Jagdish. My